उनके हिसाब से प्रॉब्लम पानी के गिलास में थी। पानी का जो फ्लास्क वहाँ रखा था उनका, जिसमें से निकाल के वो पानी दिया गया और वो उन्होंने ये बोला कि वो फ्लास्क वापस नहीं आया। शास्त्री जी की बाकी चीज़ें, उनकी घड़ी, उनका चश्मा-वश्मा वापस आ गया, लेकिन वो फ्लास्क वापस नहीं आया। तो उनका जो शक का इशारा था वो पानी के ऊपर। उन्होंने दूध पे, लाल बहादुर शास्त्री की वाइफ ने दूध पे शक नहीं ज़ाहिर किया। दूसरा है कि शक के घेरे में आ रहा है टीएन कौल, कि उसके हिसाब से कुछ गड़बड़ हुई, कि वो ही उसी का कुक वहाँ पे गया था जिस पे लोगों ने उँगली उठाई है। टीएन कौल का बिहेवियर जो है वो ठीक नहीं है। फिर उसको प्रमोशन मिल जाती है, वो फॉरेन सेक्रेटरी बन जाता है। फॉरेन सेक्रेटरी बनने के बाद में वो कुलदीप नैयर को हड़काता है कि भैया तू के खिलाफ में स्टेटमेंट दे। डॉक्टर चुग का पता है कि डॉक्टर चुग राजघाट के पास में वो गाड़ी में थे, उनकी मिसेज़ थी, उनका लड़का था, उनकी लड़की थी, शोभा। तो पीछे से ट्रक ने टक्कर मारी। ठीक था, डॉक्टर साहब बाहर निकले देखने के लिए क्या हुआ है। ट्रक ने फिर टक्कर मारी और थोड़ा सबको उड़ा दिया। Hopefully, you liked this episode. Please don't forget to like, comment, and subscribe. Namaste. I, Mithilesh and Sumit, welcome you all to a new episode of the Eastern Report. Today, we have with us noted author Sri Anuj Dhar one more time on our show. Welcome, Anuj. Thank you very much. Today, we'll discuss Anuj Dhar's book, Your Prime Minister is Dead. When Lalita Sastry saw her husband's body, it did not appear he had been dead only a few hours. His face was dark bluish and swollen. The body was bloated and it bore strange cut marks. Sheets, pillows, and clothes were all soaked in blood. As the family members raised doubts, suddenly sandal paste was smeared on Lal Bahadur Shastri's face. In the first ever comprehensive study of the enduring Shastri's death mystery, Anuj Dhar puts together a disturbing narrative going against the official version. Dhar's best-selling conundrum, Subhash Bose's life after death, inspired the national award-winning movie Gumnami. His other bestseller, India's biggest cover-up, inspired web series Bose Dead or Alive, which also led to declassification of Subhash Chandra Bose files. So Anuj, what motivated you to pursue Shastri's death mystery and write the first ever comprehensive book on the subject? Well, the story goes back to my younger days when I was a child. I grew up in New Delhi area, so among people who were essentially government officers and government babus. So as you know, everybody in those days, like I'm talking about way back, like 30, 40 years ago, people used to talk about big mysteries of our life and big mysteries of Indian politics and history. So whenever we used to discuss India's biggest mysteries, invariably there would be two issues would be discussed, and they were, of course, the issue of Subhash Chandra Bose's death and also the issue of Lal Bahadur Shastri's death. So it was a very well-known topic, and probably in the same breath, whenever Netaji was discussed, people used to discuss Shastri Ji matter as well. And I was very much there in New Delhi, so this is not very far from where I was born and I grew up. Well, this matter was there on my head all the time practically. My Mama Ji happened to be one of the visitors when Shastri Ji's body was brought to India, and there were millions of people who thronged streets and city of Delhi to take a last glimpse of his face. My Mama Ji was one of them. Then my Mama Ji used to tell me that I saw his body. His body was not normal. It will look, unusual and so on. So this was somewhere on the back of my mind. My primary interest was, of course, Netaji death. Netaji, because there's another story. My grandfather was part of the British Indian Army, and he had fought against the INA. So I had, of course, in a manner of speaking, a direct association to Subhash Chandra Bose. So when I was doing my investigation about Subhash Chandra Bose, beginning 2001, as part of Hindustan Times, so the issue of Shastri was coming off and on again. People were asking me, no, this issue also needs to be discussed, so on and so forth. So when I wrote my book, India's Biggest Corrupt in 2012, I actually wrote something about Lal Bahadur Shastri case as well. Whatever I could understand, I could make sense of in those days. And but then I never thought time was right for a book on this issue because compared to the Netaji issue,
Shastri issue was not that well known, not discussed. There was no inquiry by government at any point in time. In case of Netaji, we had at least 2 or 3 or 4 inquiries, done. There were huge amount of documents which had become available, declassified. In case of Shastri, there's nothing of sort. There was no buzz about it. If you compare it to Subhash Chandra Bose case, people used to talk about it. There were maybe sometimes an article here and there, but there was nothing much. There was not much discussed about this case. So probably this is also not a very big issue in that sense. When you compare to the Netaji death mystery issue. But then people ask me questions, so on and so forth. I try to dig around a little bit as part of my investigation to Subhash Chandra Bose death case, because some members of Shastriji's family actually came out with the view that the death of Shastriji has some linkages to the Netaji death mysteries, so to speak. So as a part of the whole, I try to investigate a little bit to the extent possible. So by 2009, I filed the first ever RTI into this case. So that was a starting point for me, and that is, I believe that was a time when Lal Bahadur Shastri death case in our times was revived. So there may have been stories in past, people discuss issue, of course, long ago, but I would say that in our times the issue was revived because of my RTI application. This was the first RTI into the Shastri case in 2009. And then again, I wrote some articles about it, and I believe those articles are fairly comprehensive, and they were probably better than anything else written in, at least in recent times. And it was in like it so happened that one day I got a call from Vivek Agnihotri ji. He said, first his missus called me up. We had a talk. I had a talk with her, and then Vivek ji was in Delhi. We met once, twice, and all that, several times. And in the course of it, this idea struck me that now that a movie is going to be made on Lal Bahadur Shastri death history, and I'm going to be a part of it in one way or the other, it probably makes sense for me to write a book about it also. Otherwise, I was not very keen before, because I did not see any reason. There was not much going for it. As I said, there was nothing by way of declassification. There was no commission and pass. There was hardly any information available other than what people are talking here and there. So this was essentially, in simple words, in simple answer to your question, is this credit for my writing this book goes to Vivek Agnihotri ji. Agnihotriji's film, the making of the film inspired me to write a book. Your premise is dead. Yeah, so we should definitely thank Mr. Agnihotri that Agnihotri ji has revived. Before him, this issue was dead as dodo. There was nothing. There was no buzz about it. So it is solely because of Vivek Agnihotri that his film, this whole issue was revived, and I also wrote this book so that I can give people, some information about this case, factual information. So tell something about the fateful day, 10th January 1966, when India lost her beloved son and Prime Minister Lal Bahadur Shastri. From all available accounts, because there are a lot of people, I believe there are 60 odd people who were present, because whenever Prime Minister goes to foreign country, the entire plane goes. So just now Modi ji, came back from America. So we had all people, so many government officials and journalists and so on and so forth. Likewise, in the case of Shastri, there must have been at least 100 odd people with him. 60 people from the government side, if I'm not wrong. There must have been at least 20 odd journalists accompanying him. So it was a proper delegation, and people saw Shastri at least. He was being seen by people around him, those who were in the government, ministers, bureaucrats, journalists, people like Kuldeep Nayyar and others. So he was there in public glare in his last known days in Tashkent, because he arrived, I believe, probably by 3rd of January, he was already in Tashkent. So it was not there for a day or two, he was there for quite some time. And everybody, in fact, everybody who saw him there found nothing wrong with his health. So he was cheerful, he was energetic, he was smiling. We also have pictures and videos of that, visuals from that era. It is with great pleasure that I express on my behalf. You will find him, very energetic, very peaceful, and when he was in his elements, he was, But then, as it happens, in heart attack, you cannot tell what happens tomorrow morning. So this is how it was. And then around 4 o'clock, the Tashkent record was signed. Tashkent is probably half an hour behind us in time, India. And 4 o'clock, the accord was signed. Then around 8 o'clock, there was some reception held in the honor of the Indian Prime Minister and the Pakistani President.
And we are talking about this time is in Tashkent. in Tashkent. That is on the 10th of January 1966. So there was a some kind of reception, music and dinner, whatever, at 8 o'clock. Shastriji probably around 10 o'clock he reached his dacha. There's a country house which was given to him. Most of the people in the from the Indian side were given they were there in a hotel, in tourist hotel, not very far from dacha. This dacha was a country house, essentially only for the prime minister, because he could have more space for him, and his people who were part of his immediate circle were there. His doctor, his security person, and other personal assistant and all that, and they were there in this particular country house, ground floor and the first floor. So Shastriji reached there at 10 o'clock, and inquired about how what people are feeling about is what they called in India. So he had two telephone calls from Delhi. One call I think was from the government, his secretary. So he gave him some briefing. The second call was from his family, and there was some disturbance over the phone, so he couldn't talk to his wife Lalita Shastri. So he asked his son-in-law to brief him, which he did, and then in between the last visuals and photographs of Shastriji were taken around 12 o'clock. You would probably, if you go on YouTube, you'll find, you must have seen an old film of Shastriji going about in his room. So that was taken almost about an hour or maybe two before his actual he passed away. So this, and he so he was absolutely okay. Nobody found any reason for him to have any problem. So Ramnath, his personal attendant for many years, was with him. He was there with him in his room, and the next morning they were to come back to India. So people packed everything. So there were other people with him, with Shastriji. Jagannath Sahib was there. Mr. R. Kapoor from the IB, he was security officer. Dr. R.N. Chugh, who was personal doctor to Shastriji for since 1956-55, and Ramnath was there with him. And then there were some cook from the Indian embassy was also there. There were cooks from the Russian side, so they were on the first floor. They were preparing food and all that. Shastriji had very light food as usual. He was some साग, आलू और साग खाया मेरे ख्याल से, मुझे याद है. थोड़ा सा साग की सब्जी खाई उन्होंने रात को, और उनको दूध का गिलास दिया गया, उनको ईसबगोल डाल करके वो खाते थे. और अराउंड maybe 12 o'clock or 12:30 he asked Ramnath to go. लाइट बंद कर दो, अब चले जाओ. तो उनका लोकेशन ये था कि उनका बेसिकली उनका एक कमरा था, बेडरूम. बेडरूम के साथ में उनका एक स्टडी थी, और स्टडी के साथ में एक विजिटर्स रूम था. बेसिकली 3 रूम का सेट, उनके 3 रूम उनके पास में थे, और उसके साथ के जो अलग अलग कमरे थे वहाँ पे आपके सिक्योरिटी ऑफिसर्स और बाकी लोग थे. So people like जगन्नाथ साहब, एमएमएन शर्मा और ये सब लोग सामान पैक करना शुरू कर दिया उन्होंने, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग दे हैड टू कम टू रिटर्न टू इंडिया. सो समथिंग लाइक रात को 1 बजे के आसपास इनको जगन्नाथ साहब और इनको हल्का सा आवाज आया, तो देखा शास्त्री जी रात को दरवाजे पे खड़े हुए आकर के, और वो नाइट गाउन टाइप उन्हें कहते कुछ उन्होंने पहन रखा था करके. शक्ल देख के अजीब सा लगा, तो इन्होंने बोला डॉक्टर, और एकदम से मुड़ गए. उनको तभी लगा कि इसमें कुछ प्रॉब्लम. एकदम से भाग करके वो उन्होंने जाकर के उनको पकड़ा और उनको कमरे की तरफ ले जाना शुरू कर दिया, अपने बेडरूम की तरफ को. सेम फ्लोर पे थे वो लोग. वो एकदम से उनको बहुत ज़्यादा खांसी वांसी होनी शुरू हो गई करते करते, और एकदम से करते करते वो बिगड़ती चली गई. डॉक्टर चुग जो थे शायद ऊपर चले गए थे, ऊपर की फ्लोर में. तो उनमें से एक आदमी ऊपर भाग करके उनके डॉक्टर चुग के पास में गया. चुग भाग कर आए. वो जब तक आए वो लेटे हुए थे, उन्होंने छाती पकड़ी हुई थी, और वो बोल रहे थे, ओ मेरे राम, ओ मेरे बाप. तो अपने पिताजी को याद कर रहे थे और भगवान राम को याद कर रहे थे. काफ़ी उनको तकलीफ हो रही थी. और वो डॉक्टर चुग जो थे, उन्होंने देखा तो उनको लगा कि हालत ख़राब है. वो भी रो पड़े. उन्होंने बोला, बाबूजी आपने मेरे को समय नहीं दिया. क्योंकि शास्त्री जी को सारे उन लोग बाबूजी बोलते थे. उनके घर में भी आप बात करेंगे तो उनके बच्चे जो हैं उनको बाबूजी बोलते हैं. तो शास्त्री जी के लिए एक ही वर्ड था, बाबूजी. तो उनके ऑफिस वाले भी उनको बाबूजी बोलते थे, पर्सनल स्टाफ के लोग. तो डॉक्टर चुग भी रोना शुरू कर दी कि बाबूजी आपने मेरे को समय नहीं दिया करके. देन ही व्हाटएवर ही कुड डू करना शुरू कर दिया. इन द मीन वाइल रशियन डॉक्टर, एक लेडी डॉक्टर वहाँ पर आई पहले, उसने ज्वाइन किया बीच में.
लेकिन इट वाज टू लेट। उसके बाद थोड़ी देर बाद 5-6 डॉक्टर्स और वहाँ पे जो उनकी पूरी टीम थी डॉक्टर्स की वहाँ पे जो उन्होंने होटल में शिफ्ट की थी, वो भी लोग वहाँ पर आ गए। उन्होंने कोशिश की लेकिन वो रिवाइव करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक्चुअली वो हो नहीं पाया। और 1:30 के आसपास जब भारत में 1 बजे होंगे, तो एक झटके में शास्त्री जी ऐसे एकदम से निकल गए। तो इसमें आपने ये पूरा अ, उस रात क्या हुआ था, आपने ये अभी विस्तार से बताया आपने। तो इसमें माने आपको क्या-क्या संदेह है? माने क्या उनको दिया गया था ज़हर, नहीं दिया गया था? इसके क्या लगता है आपको? नहीं, उसकी वो कहानी बात की है। पहले मुझे संदेह का ये है कि जिन-जिन लोगों ने 5-6 लोगों ने उनकी लास्ट मोमेंट को विटनेस किया था, हुँ, अगर आप मुझे एज़ अ रिसर्चर पूछेंगे तो मुझे उनकी आई विटनेस अकाउंट की मुझे कॉपीज़ चाहिए पूरी डिटेल्ड। हुँ, उनकी स्टेटमेंट्स होनी चाहिए, चाहे वो स्टेटमेंट रशियन गवर्नमेंट के पास में हो, चाहे मेरी गवर्नमेंट के पास में। अभी जो भी आ रहा है कि उन्होंने किसको बताया, उसने किसी को बताया, उसने अच्छा। उसको बताया, हुँ, ठीक है? अलग लोगों ने अलग-अलग बातें बोली हैं। लेकिन आई वुड हैव प्रेफर्ड फॉर जैसे नेताजी वाले केस में क्या हुआ कि नेताजी वाले केस में कमीशन बैठा था। कमीशन से पहले आपकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स हैं, इंटरोगेशन की रिपोर्ट्स हैं, तो आपके पास में जो गवाह थे, उनके आपके डिटेल्ड में स्टेटमेंट आपके पास में है। तो गड़बड़ी का पता लगाने के लिए पहले मुझे ये मालूम करना पड़ेगा कि गवाह ने बोला क्या है। क्योंकि बाद में जब ये इश्यू गर्म हुआ है और कंट्रोवर्सी हुई है, तो लोगों ने ये भी बोला किया कि गवाहों की स्टेटमेंट उनके मुँह में डाली गई थी। अब अच्छा। मुझे क्या मालूम कि रामनाथ जो बोल रहा है, रामनाथ का व्यू है कि किसी और का व्यू है। गवर्नमेंट ने तो नहीं बोला उसके बारे में। तो जैसे कंट्रोवर्सी थी कि दूध का गिलास किसने दिया उनको, तो लोगों ने पार्लियामेंट में कहा, अटल जी ने कहा कि दूध का गिलास जो है रामनाथ ने नहीं दिया था, वो किसी और ने दिया। वो उनके कुक ने जो टीएन हमारे जो एम्बेसडर थे टीएन कौल, उनके कुक थे मोहम्मद जान, उन्होंने दिया था। अब बाद में सरकार एक्सप्लेन कर रही है कि रामनाथ ने मना करा कि मैंने नहीं दिया। लेकिन प्रॉब्लम मेरी एज़ अ रिसर्चर मैं प्रेफ़र करता कि मुझे रामनाथ की स्टेटमेंट कहीं मिल जाए। या तो स्टेटमेंट उसने रशियन गवर्नमेंट को दी हो या उसने स्टेटमेंट भारत में आके दी हो। और अगर यहाँ भी अगर आके किसी डिटेल में अगर किसी पत्रकार ने ली होती, मैं उसको भी मानने को तैयार हूँ कि आफ्टर ऑल एक इंटरव्यू छपा था धर्मयुग में ललिता शास्त्री का, तो वो काफ़ी वैल्यूएबल है। क्योंकि जनरली कोई जर्नलिस्ट मिसरिपोर्ट नहीं करेगा, खासकर तब जबकि वो एक अच्छे न्यूज़पेपर का या उससे बिलॉन्ग करता हो, रिप्यूटेड हो तो कभी गलत नहीं बताएगा। तो अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम शास्त्री वाले केस में ये आ रही कि जितने आई विटनेस थे और ये सारे के सारे जो हैं सिवाय एक को छोड़ करके 1990 तक जिंदा रहे हैं मेरे ख्याल से कम से कम। तो उनकी किसी की स्टेटमेंट ही कहीं अवेलेबल नहीं है। कमी ने उनको कम से कम सरकार ने जब वो यहाँ पर आए थे, तो मेरा मानना है कि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अपने चाहे वो विदेश मंत्रालय हो, चाहे आपका उस ज़माने में तो रॉ थी नहीं, आईबी था। हुँ, हुँ। उन्होंने कम उनकी लंबी स्टेटमेंट ली होंगी ना, प्रधानमंत्री मरे, कैसे मरे, वो तो कोई यारा गया नथु खैरा मरेगा उसकी स्टेटमेंट ली जाती है। वो स्टेटमेंट मेरे हाथ में नहीं है। तो पहला प्रॉब्लम मुझे ये कि मेरे पास स्टेटमेंट नहीं है, जो मुझे अलग-अलग सोर्सेज़ से मिल रहा है, हुँ। उसी के बेसिस से मुझे लिखना पड़ता है। उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि ना वो सेकंड हैंड और थर्ड हैंड इन्फॉर्मेशन हो जाती है। दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम कि हमारे पास में रिकॉर्ड्स नहीं है, अवेलेबल नहीं है। Yes. So Atal Bihari Vajpayee was the first to lament why could summon his personal staff from his bed. हाँ, What तो did हाँ, उसमें ये था कि अटल जी वाज़ probably the first person to my knowledge who raised the issue in parliament about Shastri ji's death. और वो कारण ये था कि probably अटल जी also had a bit bad feeling about it because अटल जी being in opposition was criticizing Shastri ji. So somewhere down the line, Atal ji was feeling very bad कि because of I might have given some might have hurt his feelings in his last days because I criticized him from Tashkent the court, but there was nothing personal about it. So Atal ji of course was, and you know how what kind of person Atal ji used to be, what person he was. So Atal ji actually asked this question in parliament that who, and this was question basically not only from the Atal ji side but others also had the same opinion. Why couldn't Shastri summon anybody rather than going all the way to the third and fourth room? Because suppose you're having a heart attack, the last thing you should do is to get up from the bed and start walking. I mean, you will die. I mean, the heart attack one should lie down, without giving any further pressure to the heart. So the government and this again along with whatever government answer was not very clear. Said how can we say what was going on Shastriji's mind? Swaran Singh, the foreign minister, who was also present in Tashkent, but not in the dacha per se, but he was present in Tashkent. He said maybe Shastriji thought it is why should I disturb somebody? I should go and tell them, go personally go and ask them, these people to come to me.
So he said, I can't really answer on Shastri's behalf. But then the question was asked again thereafter was that why was there no telephone in Shastri's room? Why did he have to walk? Why could he just pick up a call phone and or something or the other? So there, the first problem arises, in the government narrative. Now the government gave a feeling, understanding. Saran Singh gave a sort of understanding in statement in Parliament. And you all of us know very well that the statements which are made in Parliament are duly vetted. They are not given just like that. So they are properly checked, verified. It's only then a minister will give a statement on the floor of the House. The statement was made in Parliament. There was a room. There were 3 telephones in Shastriji's suite, and one was meant for international call, the other was for the local calls, and third was sort of a intercom. If you just lift it, there'll be bell ringing on the other side of the dacha, and people would come running, and Shastriji was aware of it. He had used it earlier also. Now the problem, they confuse people with the word sweet. Now problem है कि the word sweet बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा. Sweet का मतलब क्या है? French word है. Sweet का मतलब आपको मैंने बोला कि sweet is not a कमरा. Sweet होता है आपके 2-3 कमरे का सेट को sweet कहते हैं. तो जो आपको मैंने अभी बताया था कि शास्त्री जी का बेडरूम था, बेडरूम के साथ में उनका एक स्टडी थी, और स्टडी के बाद में एक गेस्ट रूम था. तो बेसिकली ये 3 कमरों का मिला करके उनको स्वीट दिया गया था. तो गवर्नमेंट से पूछा गया कि उनके कमरे में फ़ोन क्यों नहीं था. दैट मीन्स उनके बेडरूम में बिस्तर के सामने फ़ोन होना चाहिए. तो ये लोग आंसर देने कि स्वीट में था. वो स्वीट में नहीं था, वो बेसिकली आपके वो स्टडी में जाके बीच में था. तो शास्त्री जी को जब उठ के अगर वो 5-7 अगर वो अगले कमरे में जा ही रहे हैं, तो वो थर्ड में चले जाएंगे. फिर फायदा क्या हुआ उसको रखने का वहाँ पे. तो लेकिन पॉइंट वो आ रहा है कि गवर्नमेंट ने उसे कंफ्यूज किया. तो आपको ये झूठ नहीं बोलना चाहिए, आपको सीधा आंसर देना चाहिए कि हाँ कमरे में उनके वो नहीं था और ये गलती हुई है. लेकिन उन्होंने ये झूठ बोला कि उसके स्वीट में फोन लगा था. तो आप जो है शब्दों का हेर फेर कर रहे हैं, आप लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं. बिल्कुल भारत की जनता को आज भी नहीं पता कि स्वीट में और कमरे में फर्क क्या है. वो तो हम बात कर रहे हैं सन 66 की. ज्यादातर लोगों ने तो 5 स्टार होटल देखे नहीं है कि वो स्वीट का मतलब क्या होता है. किसी को पता नहीं कि स्वीट का मतलब होता है कि जिसमें 3-4 कमरे हो, उसके एक हिस्से को स्वीट कहते हैं. यूजुअली एक कमरा मिलता है हर एक आदमी को. चाहे अभी 5 स्टार में नॉर्मली लोगों को एक कमरा ही मिलता है पूरा. तो ये गवर्नमेंट ने जो कंफ्यूजन जानबूझ से क्रिएट किए, तो पहले वहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ था. ये लोग चीज़ों को छुपा रहे थे. तो जो छुपाएगा वो चोरी करेगा, वही झूठ बोलेगा या वही छुपाने की कोशिश करेगा. बाकी लोग तो कोई जिसने खुल के बोलना है खुल के बोलेगा. तो जैसे वो माने ऑब्वियसली वो शास्त्री जी जो ताशकंद में थे तो उसका एक बहुत बड़ा पर्पस था. हो सकता है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं बहुत लोगों को पता होगा लेकिन कुछ को नहीं पता होगा. तो आप क्या उस बारे में बता सकते हैं क्या कि वो वहाँ पे ताशकंद में क्या पर्पस था और वो कितना सक्सेसफुल हुआ और कितना माने उससे इंडिया को भारत को क्या लाभ हो रहा था, क्या नुकसान हो रहा था, क्या उसका इसके साथ कोई लेना देना है? वो एक बहुत लंबी चौड़ी कहानी है. वो उसका मेरे से, क्योंकि मैंने उस पे कोई रिसर्च उस पे स्टडी नहीं किया है. पर्पस वो था कि भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी और सोवियत रशिया जो था उसने ऑफर किया कि हम आपकी लड़ाई में मध्यस्थता करते हैं आपकी, और आपकी लड़ाई के आपस में शांति करवा देते हैं. तो बेसिकली मीडिएशन करवाने के लिए दोनों को आपस में लाने के लिए वो डिस्कशन हुआ था. तो वो ताशकंद अकॉर्ड हुआ था कि ताशकंद समझौता हो गया था, और समझौते में कुछ पॉइंट थे कि कुछ बातें हम लोग नहीं मान रहे थे. जैसे कि वो हाजी पीर है कश्मीर में, जो इलाके हमारी फौज ने कब्जा कर लिया था पाकिस्तान में, वो तो हम देने को तैयार थे. लेकिन कश्मीर में हम लोग चाहते थे कि जो पे हमने कब्जा कर लिया, कश्मीर तो हमारा ही है, जिसको अब ये पीओके बोलते हैं, वो तो हमारा कश्मीर है. तो उस पे वो डाउट था कि हम लोग नहीं देना चाहते थे. और शायद उसका क्रिटिसिज्म भी बाद में हुआ था शास्त्री जी को लेकर के. लेकिन वहाँ जाके इवेंचुअली फिर उन पे काफ़ी प्रेशर, जो रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं सीआईए की, या जो उस टाइम पे जो हमारे लोग थे जो वहाँ गए थे, विदेश सचिव वगैरह, उन्होंने बाद में लिखा या बाकी लोगों ने लिखा, कमेंट्री जो लिखी है कि शास्त्री जी ऑब्वियसली, लेकिन प्रेशर तो होगा क्योंकि वो रशिया चाहे कि आपस में भूल चूक माफ करो, अपना ये बंद करो और शांति पे आ जाओ, पाकिस्तान भी आराम से नहीं देगा करके. तो कुछ उसमें वो था कि हम लोग नहीं चाहते थे कि उनको वापस करें, लेकिन वहाँ जाके हमने वापस कर दिया उनको. और तो ये एक अपने आप एक बड़ा मुद्दा है ताशकंद अकॉर्ड. तो ताशकंद बेसिकली हुआ था आपकी भारत पाकिस्तान की लड़ाई को युद्ध विराम के बाद कैसे हम शांति स्थापित करें भारत पाकिस्तान में. तो ये पहल करी सोवियत रशिया ने. इससे पहले सोवियत रशिया ने ऐसा कि कोई जैसे इस तरह के बहुत से समिट या वो करके यूजुअली वेस्टर्न कंट्रीज कराते थे, अमेरिका में वाले या इंग्लैंड वाले कराते थे. सोवियत रशिया वालों ने पहली बार इसमें हाथ साफ किया. तो ये उनकी तरफ से पहला उनका था कि उन्होंने भी दिखाया कि हम भी इस तरह के समिट करा सकते हैं कि जहाँ पे हम दो देशों को बुला करके उनसे आपस में रजामंदी करके बातचीत खत्म करवा सकते हैं, कोई आपस की प्रॉब्लम.
तो जैसे आप ये डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें अभी आपने जैसे कहा कि उस समय के जितने भी जो आई विटनेसेस थे, चश्मदीद गवाह थे, उनका तो स्टेटमेंट अवेलेबल नहीं है, ना ही आप ले सकते हो, आप उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर भी नहीं सकते, क्योंकि बहुत पुरानी बात हो गई है। तो अभी जो अगर कोई अभी चाहे कि वो सही में क्या था, अगर उसके कोई डेप्थ में जाए, तो आपके पास लिमिटेड सोर्सेस क्या है, जिस पे आप कुछ जिसको कॉन्क्लूजन जिसको डेप्थ में जाना हो, मेरी किताब पढ़े, पहली बात तो ये। मेरी किताब से ज़्यादा डिटेल कहीं नहीं मिलेगी आपको। जी, कुछ भी उठा लीजिए, कुछ भी नहीं है। मुझसे पहले किसी ने कोशिश भी करी होगी, जी, तो मुझसे पहले कोशिश की थी। आप भारत सरकार ने जो स्टेटमेंट दी है इस पूरे केस में, सबसे डिटेल्ड स्टेटमेंट दी है आपकी अ, अगस्त सन 70 के आसपास, 1970 में दी। अगस्त में थी, अप्रैल में थी, मुझे एग्ज़ैक्टली मंथ याद नहीं, लेकिन मोस्ट लाइकली अगस्त में दी थी वो। वो शायद 7 5-7 पन्ने की होगी मुश्किल से, दैट इज़ ऑल। इसके अलावा 2-4 रिकॉर्ड उन्होंने मुझे दिए थे आरटीआई के अंदर, वो बेसिकली वो स्टेटमेंट का हिस्सा थे। तो आपको 5-7 पन्ने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। बीच में कुछ लेखकों ने इसके बारे में कोशिश की लिखने की, उसमें से एक श्रीवास्तव जी थे, उन्होंने मेरे ख्याल से उन्होंने अपनी किताब में एक चैप्टर लिखा शास्त्री की डेथ के बारे में, जिसमें से आप समझ सकते हैं कि वो भी 5-7 पन्ने रेलेवेंट है उसके अंदर। और सबसे ज़्यादा डिटेल में अगर मुझसे पहले किसी ने अटेम्प्ट किया तो दाहिया भाई पटेल, जो सरदार पटेल के सुपुत्र थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे। तो दाहिया भाई पटेल ने एक किताब, बुकलेट, किताब नहीं बोलूँगा, बुकलेट थी, वास शास्त्री मर्डर्ड करके। 1970 में उन्होंने वो किताब को, उन्होंने बुकलेट को पब्लिश किया। तो उसमें आप समझ सकते हैं कि कोई 40-50 पन्ने के आसपास होगा, जिसमें से आप लगा लीजिए कि कोई 30 के आसपास पन्ने रेलेवेंट है हमारे लिए आज के ज़माने में। तो ये रिकॉर्ड है कि आपको इसके बारे में कुछ नहीं मिलेगा। बड़ी मुश्किल से मैंने ये तीन ताना-बाना बुन के यहाँ-वहाँ से, मतलब इसको समझाने के लिए, और जो-जो इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट है, जो-जो डॉक्यूमेंट मेरे हाथ लगे यहाँ-वहाँ से, चाहे वो अमेरिका से हों, चाहे इधर से हों, तो किसी को भी अगर रिसर्च करनी है तो अब मेरी किताब उठानी पड़ेगी। जी, हमने हमने पढ़ा भी है, हम मिथिलेश के रखा किताब बगल में रखा देखिए, हुआ है। उसमें ये था ना कि जो नेताजी वाले केस में कम से कम आपके पास में 5-6 ऑप्शन है कि आपके पास में ये किताब, हाँ जी, ये वो किताब पढ़ ली। चाहे उसका हमारी किताब से कोई मुकाबला नहीं होगा, हमारी किताब सबसे अच्छी है। लेकिन कहने को किताबें हैं और भी। हाँ, हाँ। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री वाले की जो जो अगर आपको किसी को उनकी डेप्थ में जाना है कि उनका मृत्यु को लेके जो कंट्रोवर्सी है, यही किताब है, और उसके अलावा कोई किताब नहीं जो आपको सारे पहलू समझाए इसके डिटेल। Yep. First, I would like to show this book to my audience. So this is a pretty comprehensive book on Shastriji's death mystery. So I request my audience to have and go and read this book. It is quite a page turner, and yeah, you will finish in one go. And it's a very disheartening to see the fate of one of the most beloved Prime Minister of India. So I'll request everyone to read once in your life. Yeah. और इसके अमेज़न में जब से रिलीज़ करी है, ये बेस्ट सेलर में, पॉलिटिकल में आ रही है लगातार, और लोगों में काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी इसके रिव्यूज़ अच्छे हैं, और पॉलिटिकल सेक्शन में वो बेस्ट सेलर लगातार, अभी भी मैंने परसों चेक किया, परसों भी बेस्ट सेलर में आ रही थी। ऑब्वियसली थोड़ी आनी भी चाहिए माने आनी चाहिए, इतना बड़ा इश्यू है, कोई किताब इस पे कोई टॉपिक पे है नहीं कोई, तो यही टॉपिक पे यही किताब रहेगी आने वाले टाइम पे, बहुत टाइम तो तक। हाँ, तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं आपके बुक से। जैसे आपने बुक में डिस्क्राइब किया कि दया भाई पटेल ने जिक्र किया था, और जैसा हम सभी को नहीं मालूम है कि दया भाई पटेल के, सरदार पटेल का कोई सन था और वो भी एक पॉलिटिक्स में था। इनफैक्ट मेरे लिए भी ये काफी सरप्राइजिंग फैक्ट था। कभी सुना मैं गुजरात में गया था, मैंने वडोदरा में लेक्चर दिया था मैंने वहाँ पे, हाँ, और वहाँ पे मैंने लोगों से पूछा कि आप लोगों ने कभी दाहिया भाई पटेल का नाम सुना है? और कुछ लोग, फिर ये गुजरात समाचार में खबर भी छपी है उसको लेकर के पहले पन्ने में, कि उन्होंने बोला कि दाहिया भाई पटेल सरदार पटेल के सुपुत्र थे, और उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री डेथ मिस्ट्री की इन्वेस्टिगेशन की थी, बुकलेट निकाली थी, और वो बुकलेट भारत से गायब हो गई। तो तो कहानी को आगे बढ़ाते हुए जैसे आपने पहले बुक में डिस्क्राइब किया कि देयर वर टू राइवल्स मैगजीन्स, ब्लिट्स एंड मार्च ऑफ नेशन। तो कैसे वो स्टोरी को अनफोल्ड होता है, उसको जरा बताएं। नहीं, वो स्टोरी क्या थी, वो एक स्टोरी ये था कि ब्लिट्स उस जमाने में वो टैबलॉइड थे सारे, और सारे पारसी, बड़े पारसी लोगों ने चला रखे थे, बड़े मशहूर लोग थे मतलब।
रूसी करंजिया थे, उसके ब्लिट्स के एडिटर थे, वो मेरे ख्याल से उनकी डेथ बहुत रिसेंटली हुई है, और पीलू मोदी का बीच में नाम आ रहा, और जो अलग-अलग थे 4-5 थे उनमें। लेकिन कहानी वो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, वो कहानी मतलब मैं चाहूँगा कि लोग किताब में देखें, अच्छा रहेगा उसको। पर मोटा-मोटा उसमें कहानी का मतलब ये है कि शास्त्री जी ताशकंद ब्लिट्स में खबर छपती है, और ब्लिट्स जो टैबलॉइड था वो प्रो रशियन था, रशिया को सपोर्ट करता था। और मार्च ऑफ नेशन जो थे उसके वो ये लोग थे, पीलू मोदी वगैरह वो प्रो अमेरिकन थे, पीलू मोदी की मिसेज़ जो थी अमेरिकन थी। अब वो कारण था, क्या कारण था, उनको बोलते थे सीआईए का एजेंट है कुछ करके। यानी हाँ, वो अलग कहानी है। लेकिन पॉइंट है कि ब्लिट्स में उन्होंने एक लाल बहादुर शास्त्री जी का एक लेटर छापा, जो उन्होंने ताशकंद जाने से 1 दिन पहले ब्लिट्स को लिखा था। और उसमें उन्होंने बोला कि मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, और मैं शांति के लिए जो मेरे से बन पाएगा, मैं ऐसा मोटा उसका मतलब कहने का लबो-लबाब ये था कि शांति के लिए की भावना लेकर के मैं वहाँ जा रहा हूँ। और जब वो चले गए शास्त्री जी, तो ब्लिट्स ने उसको फिर से फ्रंट पेज किया उस लेटर को। देखिए, ये उनका आखिरी टेस्टामेंट है। शास्त्री जी ने आखिरी बार जाते-जाते, ये उनका आखिरी लेटर है, उन्होंने उस लेटर में उन्होंने ये बताया कि मैं किस भावना से जा रहा हूँ, और ये कितना महान व्यक्ति था कि इस तरह की भावना लेकर के वो गया, और वो शांति भी अचीव हो गई, लेकिन वो खुद सबसे हार गए। अब उस ये घटना थी 1900, ये ऑब्वियसली ये उनके मरने के बाद की बात है, 15-16 तारीख को ये छपा होगा, जनवरी को सन 66 को। उसके 1 साल बाद मार्च नेशन, ये दूसरे टैबलॉइड में एक खबर छपती है, जो उन्होंने किसी फॉरेन पेपर, जो बैरूत में एक अखबार था, उससे उन्होंने निकाली थी। उस पेपर में, बैरूत का जो पेपर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो अमेरिकन सीआईए से वो उनका काफ़ी उनका लिंकेजेस था उस ज़माने में, या उनका लिंक अमेरिकन के साथ था, उसमें के एलिगेशन लगते थे। उन्होंने अपने पेपर्स में एक खबर छापी, और उसमें उन्होंने उन्होंने अलग-अलग बहुत से सेंसेशनल दावे किए कि ताशकंद का जो सम्मेलन बुलाया गया था, वो बेसिकली रशियंस ने अपने हिसाब से बुलाया था, अपने इंटरेस्ट में बुलाया था, उनका कोई इंटरेस्ट भारत-पाकिस्तान नहीं था। उन्होंने सब दुनिया को ये दिखाना था कि हम लोग भी इस गेम में ये काम कर सकते हैं, हम लोग भी इंटरनेशनल समिट को होस्ट कर सकते हैं। बेसिकली उनका एम ये था, उनका एम भारत-पाकिस्तान की वो नहीं था। दूसरा ये कि उन्होंने ये दावा किया कि जो भारत को हथियार दिए गए थे रशिया के द्वारा में, वो हथियार घटिया क्वालिटी के थे। और तीसरा ये बोला कि ये जो लेटर था, ये नकली है, फॉर्जरी है। तो उसको जब मार्च ऑफ नेशन ने जब छापा है, तो यहाँ बवाल मच गया देश में, कंट्री में। बस शास्त्री जी का नकली लेटर कैसे छाप दिया? प्रधानमंत्री का फॉर्जरी करके कोई छाप दे लेटर, ये तो बड़ी कमाल हुआ है। करते बात आगे चली, तो एक थ्योरी इवॉल्व हुई उसके अंदर कि अगर किसी ने भी प्रधानमंत्री का नकली लेटर बना करके छापा है, उनके नकली साइन कर दिए, नकली लेटर बना के छापा है, तो उसको ये इस बात का डर शायद नहीं था कि प्रधानमंत्री जब वापस आएँगे ताशकंद से, तो हमारी खाट खड़ी होगी। इसका मतलब ये कि जिसने भी वो ये लेटर छापा है, नकली बना के छापा है, शायद उसको कहीं न कहीं से ये आइडिया था कि शास्त्री जी वापस नहीं आएँगे। तो यही बात उछली, और करते ये पार्लियामेंट तक चली गई। पार्लियामेंट में एक आबिद अली थे, एक पार्लियामेंटेरियन थे उस ज़माने में, तो और उन्होंने भी सवाल पूछे, लेकिन आबिद अली ने स्पेसिफिकली पूछा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से कि क्या आप लोगों के पास में ये लेटर असली है कि नकली? अगर नकली है, तो आपके ऑफिशियल रिकॉर्ड में इसकी कॉपी मिल जाएगी आपको, ओरिजिनल की। अगर प्रधानमंत्री ने एक लेटर भेजा है किसी को, तो जो प्रैक्टिस होती है कि कॉपी ओरिजिनल या भेज देंगे, कॉपी उसकी फाइल में लगा दी जाती है। प्रधानमंत्री का कोई लेटर को ईमेल थोड़ी ना, उसकी कॉपी होगी ना कहीं न कहीं। तो इंदिरा गांधी जी जो ना, वो उस पे कुछ मना कर दी कि मैं इंक्वायरी नहीं करवाऊँगी। ना वो उसको आंसर दें, ना वो इंक्वायरी करवाएँ उस पे कोई। और जो पार्लियामेंट में जो सभासद, वो जो भी चेयरमैन थे अब राज्यसभा के, उनका रवैया भी वो सपोर्टिव नहीं था उसका। वो भी उस ज़माने आपको मालूम है, सारे कांग्रेस के लोग करते थे। सवाल बेसिकली शास्त्री जी की डेथ को लेकर सब लोगों ने पूछे, कांग्रेस के लोगों ने पूछे, तो वो डिमांड तो पूरे देश की थी, उसमें कोई पार्टी-वार्टी की बात नहीं है। लेकिन है कि ये एक बड़ा कंट्रोवर्शियल मामला था कि एक नकली लेटर किसी ने बना के छाप दिया, और शायद जिसने बना के छापा था उसको ये मालूम होगा कि ये वापस नहीं आएँगे, तभी उसकी इतनी हिम्मत हो गई। और जब इस बात पे इंक्वायरी करने के लिए या फिर इसको कन्फर्म करने के लिए जब प्रधानमंत्री को पूछा गया, तो उन्होंने इस बात को टाल दिया। तो ये एक अपने आप में ये एपिसोड काफ़ी मतलब संदेह खड़ा करने वाली है। तो इसको मैंने किताब में थोड़ा डिटेल में पूरा समझाया, तो आप उसमें देखेंगे, आपको अच्छा। So after 4 years, almost after 4 years, Lalita Sastry gave interview to the Dharmveer Bharati Dharmyug, and वहाँ से कहानी थोड़ा टर्न लेती है। देखिए, पहले क्या हुआ ना कि जैसे कहानी तो टर्न ये लगी थी कि जैसे ही शास्त्री जी का ऑब्वियसली रेफरेंस पार्लियामेंट में हुआ है, अटल, जैसे आपने पहले बोला, अटल जी के स्टार्ट करके
बहुत सारे नेताओं ने, सारी पार्टी के, कांग्रेस के लोगों ने, यहाँ लोगों ने ये डिमांड करी कि आप इस पे डिटेल पेश करो। सरकार ने डिटेल दी थी लेकिन बहुत कम, 1 पन्ने की रिपोर्ट दी, उससे लोग सैटिस्फाई नहीं हुए। लेकिन यहाँ पे देश में मतलब जो शास्त्री के परिवार को पहले दिन से शक हो गया था कि उनकी डेथ नेचुरल नहीं है। उनको उसके अलग-अलग कारण है लेकिन उनको शक हो गया था करके। और ये बात सारे शहर में घूम रही थी कि उनकी डेथ नेचुरल नहीं है, तो उस पे कुछ इंक्वायरी होनी चाहिए, फलाना-ढिमकाना होनी चाहिए। लेकिन सरकार जो है वो उसने साफ मना कर दी। इनफैक्ट बाद में करते होम मिनिस्टर ने साफ बोल दिया कि हम इंक्वायरी क्यों करवाएँ? जब हमें कोई शक ही नहीं है तो किस बात की इंक्वायरी कराएँ? तो जब ये साफ क्लियर हो गया कि सरकार इस पे कोई इंक्वायरी नहीं कराएगी, तो शास्त्री के परिवार में उनकी जो मिसेस ललिता शास्त्री हैं, वो खुल कर के उन्होंने पहली बार उस ज़माने में इतने टेलीविज़न वगैरह तो था नहीं, कुछ था नहीं। न्यूज़पेपर में भी इतनी बातें ऐसी नहीं आती थी। लेकिन उस ज़माने में मैगज़ीन्स आती थी अच्छी-अच्छी, और सबसे अच्छी, सबसे मशहूर मैगज़ीन हिंदी में उस ज़माने में धर्मयुग हुआ करती थी, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप की। तो धर्मयुग में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, जहाँ उन्होंने बताया कि हमारे परिवार को और हमको पूरा शक है कि उनकी डेथ नेचुरल नहीं है, उनको मारा गया ज़हर दे करके। उन्होंने बोला कि मैंने रामनाथ से और जो उनके अटेंडेंट थे शास्त्री जी के, और बाकी लोगों से बातचीत करी है। उन्होंने और बहुत से कारण गिनाए, जैसे उन्होंने बोला कि जब उनकी बॉडी को यहाँ पे लाया गया ताशकंद से दिल्ली में, तो हमारे परिवार के लोगों को, उनका लड़का शास्त्री जी का हरीश शास्त्री वहाँ पे गए, सबसे बड़े सुपुत्र जो थे, उनको बॉडी के पास नहीं आने दे रहे थे लोग। उसके बाद में जब बॉडी के पास घरवाले आए हैं, तो उन्होंने देखा कि शरीर की हालत ठीक नहीं थी, पूरा शरीर काला पड़ गया था और फूल गया था बुरी तरह से, और टाइट हो गया था, बहुत मतलब सख्त हो गया था करके, पूरा काला ब्लैक कलर कलर की शक्ल, नीला पड़ गया था करके। तो उसमें भी वो शक्ल पास में नहीं आने दिया, उनको आने देखने दिया। वो देखा तो नहीं, उन्होंने कंप्लेन किया कि ये शक्ल ये कैसा हो रखा है, तो फटाफट उसको छिपाने के लिए उन्होंने चंदन का उस पे लेप लगा दिया। तो उनको शास्त्री जी के घर में सभी को, उनकी माताजी को, उनकी धर्मपत्नी को, उनके बच्चों को, सभी को, कि ये इसमें कुछ हुआ है और इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए। फिर उन्होंने ये भी डिस्क्राइब किया कि उनके शरीर में छेद थे। एक पेट में छेद था यहाँ पे, और एक गर्दन के पीछे छेद था, और गर्दन के पीछे से उनके खून जैसी कोई चीज़ लाल रंग की निकल रही थी, और शास्त्री जी के सारे कपड़े-वपड़े, ये तो जो सराहना-वराना जो भी था वो सब खून में लथपथ थे वहाँ पे। तो ये बातें, इसमें से ज़्यादातर बातें ललिता शास्त्री ने, सारी बातें, मतलब सिर्फ़ वो खून की लथपथ वाली बात मुझे उनके नाती ने बताई है थोड़े दिन पहले। लेकिन वो छेद वाली बात ललिता शास्त्री ने बोली। उन्होंने कहा कि ये छेद था, खून निकल रहा था, ये था, वो था, और ये सब हमारे घर में हुआ है। और हम लोग चाहते थे इस पे इंक्वायरी हो, हमने ये पहले दिन से इंक्वायरी की बात करी है, हमने पोस्टमार्टम की डिमांड करी है करके, लेकिन सरकार ये, वो निकलने के बाद बवाल मच गया, और बवाल मचा करके रशियन गवर्नमेंट ने प्रोटेस्ट किया कि आप, ये कौन करवा रहा है, ये पॉलिटिकल पार्टी वाले करवा रहे हैं, क्या है ये है। उन्होंने कंप्लेन की, रशियन गवर्नमेंट ने कंप्लेन करी है इंडियन गवर्नमेंट को, आप ऐसे सवाल पूछेंगे तो हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे आपस में। और इसके बाद में पार्लियामेंट के अंदर भी हंगामा हुआ, और तो इसलिए लाल बहादुर शास्त्री के जो डेथ पर जितने सवाल सन 66 में नहीं पूछे गए, उससे बहुत ज़्यादा सवाल सन 70 में पूछे गए, जब शास्त्री जी की वाइफ ने वो इंटरव्यू दिया धर्मयुग के अंदर, और उसपे ही गवर्नमेंट को मजबूरी में एक लंबी स्टेटमेंट देनी पड़ी, जो आपको मैंने बताया कि 5-6 पेज की स्टेटमेंट है। और रशियन गवर्नमेंट ने फिर से एक स्टेटमेंट इश्यू करी, तो 70 में इसलिए ज़्यादा हुआ, और अनफॉर्चुनेटली जैसे ही 70 में करते-करते भारत-पाकिस्तान की लड़ाई फिर शुरू हो गई थी ना, टेंशन शुरू हो गई, तो उसमें ये फिर सारा मामला वहीं दब के रह गया। लेकिन सन 70 में ये मामला फिर उछला था, और उछलने का कारण था कि ललिता शास्त्री का जो इंटरव्यू धर्मयुग में छपा है, और अनफॉर्चुनेटली ये आखिरी बार था कि लाल बहादुर शास्त्री का जो मुद्दा है वो पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ है। तो सन 70 के बाद में ये मुद्दा पार्लियामेंट में कभी नहीं उछला उसके बाद से। आपको मैं पहले बता रहा था कि नेताजी वाले केस में बहुत फ़र्क है इसमें, कि नेताजी वाला केस का हालत ये है कि 1900 शुरुआत से ही 47 के बाद से लेकर के पिछले सेशन तक सवाल नेताजी के बारे में पूछे जाते हैं। शायद आज़ाद भारत में एक भी सेशन नहीं होगा पार्लियामेंट का, एक भी सवाल नहीं होगा जब सुभाष चंद्र बोस का मुद्दा पार्लियामेंट में ना उठे, और सारे पार्टी वाले उठाते थे। तो अभी पिछले साल भी लोगों ने सवाल पूछे होंगे कितनी वैलिड केस में, तो हर सेशन में नेताजी का सवाल आता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लाल बहादुर शास्त्री के बारे में सवाल 70 के बाद में खत्म हो गया। From Dr. Chugh to Cook Ramnath to Muhammad Jan, there were many eyewitnesses, but government never cared to bring them in public and give their statement. ऐसा क्यों? अब ये तो गवर्नमेंट आंसर देगी ना, क्यों नहीं आने दे रहे वो लोग। मैं क्या आंसर दूं उनको? वही मैं कह रहा हूं कि छोटे मोटे केसेस में भी लोग आगे गए। अगर ये रामनाथ और डॉक्टर चुग सब दिल्ली में थे, हाँ। देखा तो चुग तो यहाँ पे थे, रामनाथ लोहिया हॉस्पिटल में थे,
उनकी मिसेस रामनाथ लोहिया में थे, उनकी मिसेस भी डॉक्टर थी, डॉक्टर सरोजनी चुग। तो सब लोग दिल्ली में थे, रामनाथ भी दिल्ली में था। सिर्फ हमारे वो टीएन कौल साहब जो थे वो भी दिल्ली आ गए थे, बाद में फॉरेन सेक्रेटरी बनकर के यहीं आ गए थे। मोहम्मद जान जो थे वो रोम चले गए थे, लेकिन बाद में वो भी राष्ट्रपति भवन में आ गए थे, सरकारी मुलाजिम थे। सब लोग दिल्ली में हैं। दिल्ली में माशाल्लाह मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग था तब भी उस ज़माने में। तो सरकार और लोगों ने डिमांड करी है पार्लियामेंट में कि इनको डॉक्टर चुग को सामने पार्लियामेंट में लेकर आ जाए। मेरे ख्याल से पार्लियामेंट की समितियाँ उस समय भी वहाँ पे होती होंगी ना। पार्लियामेंट में बुला के इनकी इसी पे अगर गवर्नमेंट चाहती तो इनको परेड कर देती। कि रामनाथ और इन 5-7 लोगों को जिन्होंने शास्त्री जी के 5-6 लोगों ने उनके आखिरी समय में जो उनके साथ में थे, अगर वो आकर के किसी गवर्नमेंट उनका एक मीटिंग ऑर्गेनाइज़ कराया था मीडिया के साथ में, सारी कहानी वहीं खत्म हो जाती है। पार्लियामेंट में उनको पेश कर देता कि भई ये लोग थे, ये 5-7 थे, ये रामनाथ है, ये एमएम शर्मा है, ये जगन्नाथ सहाय जी हैं, ये डॉक्टर चुग है। ये 4-5 लोग वहाँ मौजूद थे, मोहम्मद जान जी हैं, ये सब लोग थे। इनके सामने जवाब इनके सुन लीजिए मुँह से। तो सबसे बड़ी कमाल की बात ये कि ये लोगों का नाम ही कहीं नहीं आ रहा उसके बाद से। अहरे-गैरों के बारे में लंबी-लंबी वो किताबें लिखी जा रही हैं। ये लोग थे, अब जहाँ तक मेरा ख्याल है कि 90 के दशक तक सभी काफ़ी लोग ज़िंदा रहे हैं उसमें से। किसी का इंटरव्यू नहीं है। 2-4 किताबों में बड़ा उनका स्टे रेफ़रेंस आ रहा है उनके बारे में। सरकारी आर कपूर साहब थे, सिक्योरिटी ऑफिसर आईबी में थे। तो वो जो आदमी आईबी में जॉइंट डायरेक्टर रिटायर होके था, वो आदमी कहाँ गायब हो गया? हाँ, वो इंडिया में ही था, इंदिरा गांधी का भी वो सिक्योरिटी ऑफिसर था बाद में। उसकी स्टेटमेंट क्यों नहीं है? कभी उसने किताब में क्यों नहीं लिखा? तो सबसे बड़ी कमाल की बड़ी अजीब-सी घटना ये घट रही कि इतने 5-7 लोगों में से किसी का कोई डॉक्यूमेंट्री में कहीं किसी का नाम ही नहीं आ रहा किसी का। तो अगर ये लोग की स्टेटमेंट अगर आ जाती ना, मीडिया में भी आती डिटेल में, तो ये केस उसी टाइम पे दब जाता, कंट्रोवर्सी दब जाती। क्योंकि गवर्नमेंट ने होने नहीं दिया, क्योंकि मेरा मानना है गवर्नमेंट ने नहीं होने दिया, क्योंकि वो तो सब चाहेंगे बताना, कौन नहीं चाहेगा बताना ऐसी बात? कोई आदमी अच्छी या बुरी बात को देखता है और जनता में उसको लेके क्यूरियोसिटी है, तो डॉक्टर चुग और अपने बाकी लोग तो वॉलंटियर करेंगे इन्फॉर्मेशन, वो क्यों छुपाएँगे? वो तो बताते हैं लोगों को, देखो जी ऐसे था, ऐसे-ऐसे शास्त्री जी का अंत हुआ हमारे ज़माने में। इसका मतलब उन्हें प्रेशर था। तो प्रेशर होगा, नहीं तो ऐसा कोई आदमी ऐसी इन्फॉर्मेशन को छुपा के रखेगा नहीं। इसका सीधे से बात मतलब है कि उन पे प्रेशर डाला गया और यही बात पार्लियामेंट में बोली गई थी कि इन पे प्रेशर लगाया गया। अगर नेचुरल डेथ भी होता है तो कोई अपना स्टोरी बताएगा ना मैगज़ीन में कि मैं वहाँ था, ऐसे प्रधानमंत्री हाँ, मरे। तुमको एक इंटरव्यू दे देता है कि मेरे सामने हुआ था, वो ऐसे मरे थे। इसको बताने में क्या हर्ज थी? अगर नेचुरल कोई डेथ ही था तो डर किस कोई बात का? कोई हर्ज नहीं, कोई हर्ज नहीं। दे वुड हैव कम, दे वुड हैव गिवन अ वेरी प्रॉपर स्टेटमेंट, तो कुछ है ही नहीं। जिसमें पार्लियामेंट में एलिगेशन लगाए गए थे, उसमें एक एलिगेशन ये भी था कि इन्होंने सरकार के प्रेशर में वो स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं, व्हिच सीम्स टू मी टू बी करेक्ट। अच्छा, एक स्टेटमेंट जो आपने बुक में मेंशन किया है, जब पार्लियामेंट में पूछा गया कि दूध किसने दिया था, तो गवर्नमेंट ने बताया कि रामनाथ ने दूध का गिलास दिया था। बट ये बात तो गवर्नमेंट ने बताया ना कि रामनाथ ने ग्लास का दूध हाँ, दिया। वो बाद में बट उसमें रामनाथ ने तो नहीं बोला ना पब्लिक में नहीं, आके नहीं, कि मैंने दिया रामनाथ नहीं बोले, लेकिन मेरे लिए मोर रिलायबल ये है कि ललिता शास्त्री ने जो स्टेटमेंट अपने धर्म में दी है, उसमें उन्होंने बोला है कि रामनाथ ने मुझे बोला कि दूध का गिलास मैंने दिया था, लेकिन वो उसको गर्म करने वाला मोहम्मद जान था दूध के अंदर से। और उन्होंने ये भी बोला कि दूध में प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि दूध जो था वो लेने के बाद हमारे फ़ोन में बात हुई है हमारे। उनके हिसाब से प्रॉब्लम पानी के गिलास में थी। पानी का जो फ्लास्क वहाँ रखा था उनका, जिसमें से निकाल के वो पानी दिया गया। और वो उन्होंने ये बोला कि वो फ्लास्क वापस नहीं आया। शास्त्री जी की बाकी चीज़ें, उनकी घड़ी, उनका चश्मा-वश्मा वापस आ गया, लेकिन वो फ्लास्क वापस नहीं आया। तो उनका जो शक का इशारा था वो पानी के ऊपर। उन्होंने दूध पे, लाल बहादुर शास्त्री की वाइफ ने दूध पे शक नहीं ज़ाहिर किया। वो है कि पानी के, उन्होंने उनके हिसाब से पानी में प्रॉब्लम है। अब वो ठीक है गलत है वो अलग कहानी है, लेकिन उन्होंने पानी की बात बोली। उन्होंने बोला कि वो फ्लास्क वापस भी नहीं आया, क्योंकि उनका सामान था। और गवर्नमेंट ने ये स्टेटमेंट दी है कि जितना सामान वो ले गए थे प्रधानमंत्री, उसकी इन्वेंटरी बनी थी ताशकंद में, और वापस आए तो वो इन्वेंटरी बना के चेक किया, वो हमारे पास में। गवर्नमेंट ने ये दावा किया कि वो हमारे पास में है। अब उन्होंने पेश तो कभी किया नहीं पब्लिक के सामने, लेकिन फैमिली वाले कह रहे हैं कि चश्मा-वश्मा हमारे हाथ में आ गया। चश्मे का केस, उनके कपड़े, वो सब उनके शायद फैमिली को मिले हैं, लेकिन वो कह रहे हैं फ्लास्क हमको नहीं मिला। वो फ्लास्क कहाँ पे गोल हो गया? और उनका इशारा था पानी में कुछ प्रॉब्लम हुई। क्योंकि जब उनको शास्त्री की जो मिसेस ने, जो ललिता जी ने जो स्टेटमेंट दिया, उसके हिसाब से जब उनको तकलीफ हो रही थी, तो वो बार-बार उस फ्लास्क की तरफ इशारा कर रहे थे। तो उनको निकाल के किसी ने पानी दिया तो उन्होंने पानी देने से मना कर दिया, फिर इशारा किया उसको, कि बोल नहीं पाते लेकिन वो इंडिकेट कर रहे थे। तो उनका मामला ये था कि कुछ पानी में गड़बड़ थी,
लेकिन हाँ, पार्लियामेंट में दूध को लेके सवाल उठ रहे, बेसिकली जो सवाल उठ रहे थे वो बेसिकली उठ रहे थे मोहम्मद जान के ऊपर, जो रसोइया था, और वो हमारे वो जो एम्बेसडर का रसोइया था वहाँ पे, टीएन कॉल का। और टीएन कॉल साहब जो गांधी खानदान के रिलेटिव हैं, उनके रिश्तेदार थे उनके। तो बेसिकली वो इंडिकेशन उसके बहाने इनडायरेक्टली उन पे लगा रहे थे कि खाना तो उसने बनाया था, रामनाथ तो सिर्फ सर्व करने जा रहा था, बना तो वो था नहीं, रानी था। दूध भी गर्म उसने नहीं किया, दूध तो राम मोहम्मद जान ने गर्म किया, उसने दिया होगा। तो बेसिकली कहीं ना कहीं फैमिली को और हमारे जो नेताओं को मोहम्मद जान के तो शक था। अब मोहम्मद जान की कोई दुश्मनी तो थी नहीं, बेचारा वो भी सरकारी मुलाजिम में छोटा सा कुक था, तो वो भी किसी के बिहाफ पे काम कर रहा होगा ना। दैट वाज द एलिगेशन एक्चुअली। वो कौन थे जिनके बिहाफ पे उसने काम किया, दैट इज अ क्वेश्चन। अच्छा, तो टेल अस समथिंग अबाउट त्रिलोकीनाथ कौल एके टिक्कू जो टिक्कू साहब जो थे बड़े जबरदस्त, मतलब इस देश के जाने माने सिविल सर्वेंट में से एक थे। कश्मीरी पंडित थे, तो फिर नेहरू खानदान के थे, तो ऐसे उनकी गुड्डी चढ़ी हुई थी स्कूल लेकर के। बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते थे और देखने में अंग्रेज लगते थे पूरे। अंग्रेजी थे, मतलब अंग्रेजों के ज़माने में आईसीएस बन गए थे, जॉइंट सेक्रेटरी थे विदेश मंत्रालय में पहले। Well, why has India taken this action against Gar? Because, as the Prime Minister said a few weeks ago, India's patience has been exhausted after trying for 14 long years since our independence to settle. सुभाष बोस वाला केस भी उन्होंने हैंडल किया था 1947 में, जब हमारा दूतावास खुला है, हमारा वहाँ पे ऑफिस खुला है मॉस्को में, तो भारत का, तो टीएन कॉल साहब वहाँ पे थे, उनकी पोस्टिंग वहाँ थी। पंडित जी की बहन जो थी वो हमारी एम्बेसडर थी पहली वहाँ पे, तब भी कंट्रोवर्सी सुभाष चंद्र बोस के बारे में वहाँ पे हुई थी। तो टीएन कॉल ने काफ़ी सेंसिटिव पोस्ट पे काम किया, और उसके बाद में उनका रिकॉर्ड ये रहा है, अगर ओवरऑल आप देखेंगे, मेरे ख्याल से कोई और विदेश मंत्रालय का अफसर का ऐसा बैकग्राउंड नहीं रहा होगा कि ये आदमी हमारा एम्बेसडर था मॉस्को में, उसके बाद में ये हमारा एम्बेसडर है अमेरिका में। मेरी मेरी नॉलेज में ऐसा कोई भी भारत में ऐसा आदमी नहीं है जो दोनों भारत में और अमेरिका में एम्बेसडर हो। दोनों बिल्कुल ज़मीन के दूसरे कोने पड़ते हैं। कोई भी आदमी दोनों जगह पोस्टिंग नहीं करके देखता एज एम्बेसडर। तो ये एम्बेसडर हमारा मॉस्को में था, ये हमारा एम्बेसडर वॉशिंगटन में था। फिर मॉस्को में बनाया राजीव गांधी के टाइम पे, उसको रिटायरमेंट के बाद फिर लेकर आ गए थे, इसकी इतनी इंपॉर्टेंस ये थी इसकी। और ये हमारा चाइना के अंदर भी एम्बेसडर है। और बीच में ताशकंद होने के एकदम 5-7 महीने के बाद में प्रमोशन मिल गई, और ये यहाँ पर आपका फॉरेन सेक्रेटरी बनकर आ गए। ये फॉरेन सेक्रेटरी भी थे। तो ऐसा रिकॉर्ड तो कभी मतलब नहीं सुना कि फॉरेन सेक्रेटरी भी वो हो, एम्बेसडर अमेरिका में भी हो, एम्बेसडर मॉस्को के अंदर भी हो, उसके बाद में वहाँ भी हो। तो बहुत उस तरह का था। और उन्होंने फिर बाद में किताबें लिखी बहुत सारी, बहुत लेक्चर्स दिया करते थे। वो ज़माना और तरह का था। आज के ज़माने में होते तो ये छा जाते पूरे टीवी के चैनल्स के ऊपर। बहुत अच्छा बोलने वाले और बहुत जाने-माने थे, और किताब खुल कर के अपनी बात खुल के रखते थे। उन्हें काफ़ी उसमें उन्होंने उल्टी-सीधी बातें लिखी अपनी किताब के अंदर, लेकिन शास्त्री के बारे में कुछ लिखा ही नहीं, मरने के बारे में। औरों के बारे में दुनिया भर की बातें लिख रहा है बैठ करके। अब किस्मत लोग ये मर गए हैं, आप किसी को आप बोल सकते नहीं। अगर ज़िंदा होते तो इनकी हम इनकी पकड़ते हैं इन लोगों को। अब ये लोग चले गए हैं तो आप इनको कुछ कर सकते नहीं हम लोग। So tell us something about your RTI in 2009. How it brought case into the मैंने light. उनसे ये पूछा, मैंने प्रधानमंत्री ऑफिस को पूछा था। मैंने कहा आप लोग के पास में, बिकॉज़ मुझे आइडिया नहीं था कि इनके पास में है क्या मटेरियल। मैंने आपसे पूछा कि आपके ऑफिस में शास्त्री की डेथ से जुड़ी हुई कितनी क्लासिफाइड फाइल्स, उसकी मुझे आप लिस्ट दो आप। और क्या आप लोगों ने कोई डॉक्यूमेंट उनके जलाए हैं, उनके बारे में डिस्कशन तो नहीं किया कुछ करके? तो इन्होंने मुझे आंसर दिया कि हमने कोई डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं जलाए हैं, और हमारे पास में सिर्फ एक कागज़ है जो क्लासिफाइड है। तो मैं सुन के हैरान रह गया उसको बिल्कुल, कि इतना बड़ा मुद्दा, इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है और इनके पास में एक फाइल भी नहीं है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में तो कम से कम 40-50 फाइलें इनके पास में थी उस ज़माने में, और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा है, सिर्फ एक, जो क्लासिफाइड है। तो फिर मैंने उसको फिर, जैसे आरटीआई में होता है कि आप जब अपने उनसे उससे खुश नहीं होते हो अपने उसके जवाब से, तो आप कुछ आप सूचना आयोग में जाकर के बात करते हैं। मैंने वहाँ डाल दिया उनके ज़रिए। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमारे देश में ना सूचना का अधिकार का पहले तो हुआ था, तो बहुत अच्छा था शुरुआत में, लेकिन करते 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 ये प्रोसेस बहुत लंबी हो गई है, बहुत लंबा टाइम लगता है। तो आप
2-2, 3-3, 4-4 साल आपको वेट करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से ये 2 ढाई साल बजा के 2011 में जाके मेरा नंबर आया। तो फिर वो वहाँ पे मुद्दा हुआ, तो सदानंद मिश्रा जी उस ज़माने में चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, तो उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने विदेश मंत्रालय और प्रधानमंत्री ऑफिस के लोगों को बुलाया। बोला इन्होंने एप्लीकेशन डाली है, आप लोगों ने आंसर दिए ही नहीं आप लोगों ने। वो आपने बोला डॉक्यूमेंट सीक्रेट है। मैंने अपना बात बोली, उन्होंने अपनी बात बोली। उन्होंने बोला ये डॉक्यूमेंट मेरे को दिखाओ आप लोग, डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है हम देखते हैं, तभी मैं फैसला लूँगा। तो फिर वो मीटिंग में ना वो डॉक्यूमेंट को लेकर आया, जॉइंट सेक्रेटरी उसको सीक्रेट बना करके ना वो पूरा सील बंद ठप्पा लग के आता है और जॉइंट सेक्रेटरी पर्सनली डिलीवर करता है। तो मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे सामने वो जॉइंट सेक्रेटरी बैठा, उसके हाथ में वो कागज़ था। बस एक ऐसे हाथ में आकर मैं ले लेता तो मेरे हाथ में आ जाता, लेकिन फिर मैं जेल में चला जाता, फिर क्योंकि वो तो इलीगल हो गया ना। तो मेरे साथ ही बैठे थे, तो उनके हाथ में वो सील पड़ा था, प्रधानमंत्री ऑफिस की सील लगी हुई थी कि सीक्रेट कागज़ है। तो मिश्रा जी को हमारे सामने दिखा है। मैं यहाँ से बैठ के देख रहा हूँ कि क्या बोल रहे हैं। उन्होंने पढ़ के तो एनीहाउ वो बाद में मालूम चला हमको कि क्या उस कागज़ में लिखा क्या। उस कागज़ में उन्होंने ये लिखा हुआ है कि जो उन्होंने मना करा। तो मिश्रा जी ने भी बोला कि ये डॉक्यूमेंट पब्लिक डोमेन में नहीं आ सकता, कि इससे जो ये बात बोल रहे हैं कि किसी देश से रिश्ते खराब हो जाएंगे, बात ठीक है। तो उसमें एसेंशियली उसमें जो मोटा-मोटा जो ये लिखा हुआ है कि शायद उस पेपर में अमेरिका पे उन्होंने एलिगेशन लगाया कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने ये सीआईए ने शास्त्री के मरने पे झूठी कहानियाँ फैलाई हुई। So that is the only कागज which the government of India is holding back in the Prime Minister's office. In the meanwhile, I also filed another application with the Ministry of External Affairs. जो पहली वाली जो मेरी एप्लीकेशन थी, जो मैंने पीएमओ को और एमईओ को भेजी थी, उसमें उन्होंने पल्ला झाड़ दी कि हमारे पास में कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं। आप इस बात को मानेंगे क्या? प्रधानमंत्री मर गया फॉरेन कंट्री में जाकर के और ये कह रहे हैं हमारे पास में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। भाई तुम पागल किसको बना रहे हो भैया? फिर मैंने एक नई एप्लीकेशन फाइल की, मैंने अपील नहीं किया। मैंने उनको बोला भैया, समझाया उनको कि जिस दिन प्रधानमंत्री मरा होगा ना, आपने कम से कम 150 बार फ़ोन खड़काए होंगे दिल्ली के आपने 1000 टेलीग्राम दिल्ली भेजे होंगे, आपने पूरी इंक्वायरी करी होगी, आपने रशियन गवर्नमेंट से पूछा होगा, वो सारे कागज़ कहाँ हैं? तब इन्होंने मुझे आंसर दिया कि वो तो नेशनल सिक्योरिटी है। तो तुम पहले बोलते नेशनल सिक्योरिटी, तो तुमने मुझे बोल दी कि इन्फॉर्मेशन नहीं हमारे पास में। वो कहानी है। तो फिर वो उन्होंने नहीं उसका आंसर नहीं दिया। वो तो मिश्रा जी ने भी उनको बोला कि उनको जो इन्फॉर्मेशन दो, तो उन्होंने मुझे एक कागज़ का टुकड़ा पकड़ा दिया था जिसमें कि राज्यसभा में जो स्टेटमेंट दी उसकी फ़ोटोकॉपी वो भी फटी हुई थी। कुछ नहीं दिया उन्होंने मेरे को। तो वो नहीं देंगे वो लोग, तो उनका तो ये सूचना के अधिकार से कुछ नहीं आने वाला है। इनफैक्ट उसके बाद एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट हुई है। वो डेवलपमेंट ये है कि मेरे ख्याल से एक एससी अग्रवाल, सुभाष चंद्र अग्रवाल जी हैं, बड़े जाने-माने आरटी एक्टिविस्ट हैं, बुजुर्ग हैं। उन्होंने फिर शायद एप्लीकेशन फाइल की थी। जहाँ तक मेरे याद है उन्होंने ही करी थी। और ये बात अब 2-3 साल पहले की है। उसको देख कर के जो सूचना आयोग ने मेरी एप्लीकेशन को फिर से रिकॉल किया और बात करी, और उन्होंने प्रधानमंत्री ऑफिस को ये बोला कि आप लोग सारे कागज़ को अपने पास मँगाइए और आप उनको डिक्लासिफ़ाई कीजिए। जहाँ तक मेरी नॉलेज है, सीआईसी के ये ऑर्डर के बाद प्रधानमंत्री ऑफिस ने कुछ किया हो मुझे तो पता नहीं है। मैंने तो आज उसके बारे में कभी मीडिया में उसका आंसर नहीं पढ़ा। और ये मैं इसी गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, मोदी गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने कोई उसका जवाब नहीं दिया। जब आपने जो आरटीआई फाइल किया था, जो प्रोसीडिंग हुआ उसके बाद, तो वो तो कांग्रेस गवर्नमेंट में था। 2009 और वो क्या 11-12 वो तो हाँ, कांग्रेस तो 14 के बाद क्या कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। तो आपने दोबारा ट्राई किया? मैं तो छोड़ दिया। मैं तो 11-12 के मैं हर एक चीज़ का टाइम होता है जी। आपको ज़िंदगी भर ही आटे डालते रहेंगे, क्या करेंगे? 2-2 3-3 4 साल लग जाते हैं। 2-3-4 साल लग जाते हैं, वो आंसर देते नहीं है, फिर वो आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो मैंने वो मेरा उसके बाद मेरा वो टूट गया, तो मैंने उसके बाद में करना छोड़ दिया। अब मुझे ये भी लगा कि लोग देंगे तो है नहीं, उससे अच्छा तरीका। और हमको थोड़ी ये उम्मीद थी कि मोदी जी के साथ में नेताजी वाले इश्यू को लेकर के कि इनको हम लोग, क्योंकि इनको अंदर से अप्रोच करके, पर्सुएड करके, मतलब दूसरे रास्ते से इनकी अप्रोच कीजिए। मुझे तो इन्फॉर्मेशन निकालने से मतलब है, चाहे वो आरटीए से निकले चाहे वैसे निकले। तो हम गवर्नमेंट को अगर वैसे ही हम लोग प्रपोजल दें कि आप लोग फाइलों को डिक्लासिफाई करें तो उसमें अच्छा रहेगा। तो नेताजी को लेके हम कुछ ना परसेंटेज हमें सक्सेस उससे मिली, कुछ परसेंटेज। लेकिन शास्त्री वाले में वो माहौल हम लोग बना नहीं देश में, क्योंकि उसके लिए शायद माहौल बनने लायक स्थिति अब उत्पन्न नहीं हुई कभी। कोशिश हमने करी है, जब हमारे नेताजी के जो कागज़ खुले थे, तो जो प्रधानमंत्री ने हमको बुलाया था, तो उस मीटिंग में सिद्धार्थ नाथ सिंह जी भी थे हमारे साथ में, जो लाल बहादुर शास्त्री के नाती भी हैं। तो हम लोग साथ में थे। वो आप देखिए जो जॉइंट फोटोग्राफ हमारी इस ज़माने की है, जब प्रधानमंत्री ऑफिस में हम लोग मिलने के लिए गए थे उनसे 2015 में, जब नेताजी के कागज़ निकलने की बात हुई थी। सिद्धार्थ नाथ सिंह जी भी हमारे साथ में वहाँ पे थे।
वो बात है। उसके बाद में, उससे पहले भी और उसके बाद भी कई बार शास्त्री परिवार में अनिल शास्त्री जी ने जो सबसे बड़े लड़के अभी उनके जीवित हैं, उन्होंने और बाकी लोगों ने, उनके नाती-पोतों सब लोगों ने डीक्लासिफिकेशन की बात करी कि फाइलें पब्लिक होनी चाहिए। तो डीक्लासिफिकेशन की बात तो अनिल शास्त्री भी करते हैं, जो खुद कांग्रेस में थे, उन्होंने कांग्रेस के टाइम पे भी उन्होंने कहा था कि फाइलें पब्लिक होनी चाहिए। लेकिन सरकार का रवैया जो है वो गोल-मटोल वाला है। इनफैक्ट उज़्बेकिस्तान गवर्नमेंट, क्योंकि ताशकंद अब उज़्बेकिस्तान में रशिया में तो रहा नहीं। उज़्बेकिस्तान का एम्बेसडर ने भी पब्लिक स्टेटमेंट दिया कि अगर कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पे इंक्वायरी करेगी या कुछ करेगी तो हम पूरा सपोर्ट करेंगे। तो ये कोई जवाब नहीं दिया इन लोगों ने। अभी तो इनका सारा फ़ोकस महात्मा गांधी का भक्ति करने पे है इनका, बीजेपी का सारा फ़ोकस उसी पे ही है। उनको सिवाय महात्मा गांधी के अलावा दुनिया में कोई नज़र नहीं आता आजकल। ये प्रॉब्लम हो गई, बहुत बड़ी हमारे सामने खड़ी हो गई है कि ये गांधी भक्ति के अलावा इनको कोई, इनके आस में कोई ऑप्शन, इनको कुछ कोई नज़र नहीं आ रहा है इनको। बाकियों को लिप सर्विस दिखाने के लिए कभी-कभी साल में 2 बार नाम लेते हैं सावरकर का या सुभाष चंद्र बोस का, छोटा-मोटा, बट 99% तो इनका पूरा एफर्ट और पूरा इनका फ़ोकस गांधी भक्ति पे। अभी जो पीछे थोड़े दिन पहले ये गए थे प्रधानमंत्री हमारे बाइडेन साहब से मिलने अमेरिका में, तो वहाँ भी गांधी भक्ति का नाम उन्होंने स्टार्ट कर दी। अरे यार, तुमने हथियार उसने देने, तुमने हथियार खरीदने हैं। क्या मज़ाक बना के रखा है तुम लोगों ने? शांति की बात करने के लिए ओवल ऑफिस रखा, सारी मिलिट्री की बातें होती हैं वहाँ पे। अमेरिका की ताकत मिलिट्री में है, हमारी होगी शांति में, अहिंसा में। उनकी, अमेरिका की ताकत अहिंसा में नहीं चलती, उनकी ताकत फौज में है। हम भी उनसे हथियार लेते हैं, आप जाके वहाँ शांति की बातें कर रहे हैं। तो बड़ा अजीब-सा प्रॉब्लम हो गया ना। तो सरकार कुछ नहीं कर रही है हमारी। सरकार सरकार का रवैया नेताजी वाले केस में और कांग्रेस के टाइम पे और अभी के टाइम पे एक जैसा ही है। सरकार का रवैया शास्त्री वाले केस में बिल्कुल, उससे भी क्या गुजरा, मतलब वो तो कुछ बोले ही नहीं मुँह से ये लोग। जब ये लोग पावर में नहीं थे, बीजेपी के लोग, तो ये बातें करते थे इन चीज़ों के बारे में। पावर में आने के बाद तो गांधी के अलावा किसी का नाम ही नहीं लेते ये लोग। ये तो कांग्रेस से ज़्यादा बदतर किस्म के लोग हैं मेरे ख्याल से इस मामले में। बाकी चीज़ों में सपोर्ट करूँगा इनकी मैं, लेकिन इस मामले को लेकर के इनका रवैया बहुत घटिया किस्म का है। ये लोग जब पावर में नहीं थे तो ये बातें बड़ी-बड़ी करते थे। पावर में आने के बाद इनको सिवाय महात्मा गांधी के अलावा इनको कोई नज़र ही नहीं आता दुनिया में। बात ही नहीं करते किसी की। अब तो आप लोग पावर में है ना, आप निकालिए कागज़। आप ही के नेताओं ने उसको उछाला था ना पार्लियामेंट में। अटल बिहारी वाजपेयी को मेरे चाचा थोड़ी थे कोई, आप ही की पार्टी के लीडर थे, देश के प्रधानमंत्री थे। एल.के. अडवाणी ने वो मुद्दा उठाया था पार्लियामेंट में। फिर अब सब भूल गए लोग। ओके, सो कायदे से आगे तो बढ़ते अटल जी को प्रधानमंत्री के बनने के बाद में फाइलें खोलनी चाहिए थी सारी। अटल जी ने नहीं खोली, अडवाणी जी अभी भी बैठे हैं। So, when something happens beyond control, our leaders resort to blame the CIA. Did CIA kill? हमारे ना एक प्रॉब्लम है बड़ी ज़बरदस्त। वो प्रॉब्लम का जड़ क्या है कि इन्होंने इंडिपेंडेंस के वो पहले ना बड़ी बातें मारी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अंग्रेज जाएँगे तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हुआ कुछ है नहीं। देश रहा गरीब का गरीब, हालत खराब लोगों की यहाँ पे। तो कहीं न कहीं किसी न किसी आदमी को ये थ्योरी बिल्डअप हुई कि आप ना सारा ब्लेम अंग्रेज़ों पर ठोको। क्या जा उनको गए 40 साल हो गए, अभी भी कोई है कहते हो अंग्रेज करवा गए थे यार वो तो। अरे यार, उसको गए 40 साल हो गए, छोड़ो उसको तुम ना। वही करते-करते आप एक और ट्रेंड स्टार्ट हुआ कि सारा ब्लेम अमेरिका पे ठोक दो, सीआईए ने करवाया। तो ये एक बड़ी पुरानी और एक बीमारी सबसे ज़्यादा कांग्रेसियों का है। और ये इन्होंने 1960 के दशक में स्टार्ट हो गई थी प्रॉब्लम इनमें, और ये हर छोटी-बड़ी चीज़ में अमेरिकन को घुसेड़ते थे। उन्होंने, अगर आपको याद होगा, आपका जेपी का मूवमेंट जो था अपना अपना ये बिहार में? इमरजेंसी वाला, तो जेपी को सीआईए एजेंट कहा गया था। अन्ना हज़ारे को भी सीआईए का एजेंट बोला है। अरे सीआईए वालों के पास में एजेंट लेने के लिए वो लोग कम रह गए जो अन्ना हज़ारे को लेंगे एज़ एजेंट के तौर पे। उनके पास बहुत ऑप्शंस है अगर उनको लेना होगा तो। ऊपर से ये अपना, मेरे ख्याल से उन्होंने ये भी थ्योरियाँ फ्लोट करी हैं कि जो बॉम्बे में अटैक हुआ था, मुंबई अटैक हुआ था, उसमें भी अमेरिकन्स का हाथ था, सीआईए का हाथ था। फिर देश में उन्होंने स्टेटमेंट दी, क्या नाम है अपने, उस ज़माने में पहले कांग्रेस के नेता थे, बाद में राष्ट्रपति बन गए हमारे शंकर दयाल शर्मा जी। वो कह रहे हैं कि हमारी जो, हम कांग्रेस वाले गरीबी हटाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें सीआईए बीच में आ रही है। यार, क्या पागलपंती की बातें तुम लोग कर रहे हो स्वदेश में। फिर हद तो उन्होंने यहाँ करी है, जो पागलपने की हद ही है। पागलपनी, बहुत चतुर किस्म के लोग हैं इन्होंने। आप मानोगे नहीं और आपके सुनेगा आपका दिमाग घूम जाएगा कि भारत का गृह मंत्री
पार्लियामेंट में खड़े होकर के ये दावा कर रहा है कि राजीव गांधी को सीआईए ने मरवाया है, क्योंकि राजीव गांधी इतना बड़ा लीडर बन गया था कि हम लोग उनके अमेरिका वाले उससे डर रहे थे उससे। तो इस तरह की बातें ये इन्होंने अपने बारे में कर कुरा करके ये बातें कर रहे हैं, और इतने इतने चतुर किस्म के लोग हैं। जिस टाइम ये एलिगेशन लगाए जा रहे थे कि अमेरिका ने मरवा दिया राजीव गांधी को, राहुल गांधी साहब अमेरिका में पढ़ रहे थे। और ये जितने लोग इस पे एलिगेशन, चाहे वो डिग्गी राजा हो चाहे वो हो, जिन जिन लोगों ने अमेरिका पे एलिगेशन लगाए हैं, इन सबके बच्चे अमेरिका में रहते हैं, इनके रिश्तेदार अमेरिका में सेटल। जितने ब्यूरोक्रेट्स हमारे देश के हैं, आपको मेरे को बैठ के पढ़ाते हैं पार्ट ये नॉन लैंड मूवमेंट का, इनमें से किसी का बच्चा नॉन लैंड कंट्री में नहीं जाता भैया, सब अमेरिका में जाते हैं, सब इंग्लैंड में जाते हैं। ये आप लोग को मेरे को घुट्टी बनाने के लिए बेकार की बातें हैं। सबके बच्चों ने वहीं सेटल होना, सबकी फैमिली वहीं जाएंगी इवेंचुअली, इन लोगों की, बड़े साहब लोगों की। तो ये लोग सारे के सारे अपने खानदान को तो सेटल कर रहे हैं अमेरिका में, लेकिन हर जगह गाली अमेरिका को देते हैं। तो इसको बात को लेके जब राजीव गांधी वाली बात, मैंने वो किताब में डिटेल दी है मैंने, राजीव गांधी वाली बात को लेकर के अमेरिका की जो कांग्रेस है वहाँ मुद्दा उछल गया था। उन्होंने कहा कि इनका दिमाग, इन लोगों का दिमाग ठिकाने लगाओ, कोई डॉक्टर वॉक्टर के पास जाएंगे लोग। हिंदुस्तान के लोग क्या हो गया इन लोगों को? अरे हम तो आप लोग भूखे नंगों को हम तो खाना देते हैं हम लोग को, आप जो कह रहे हैं हम आपके पीछे पड़े, हम कहाँ पीछे पड़े हैं आप लोग? तो उन्होंने ये बात बोली है, हम तो आप लोग को मदद कर रहे हैं, आप लोग की, आप कैसे तो बोल रहे हो कि हम आपके बीच में हम कर रहे हैं? इस तरह की वाहियात बातें बोली जा रही हैं। तो अमेरिकन सीआईए का कोई इसमें हाथ नहीं है, और सिर्फ अमेरिकन सीआईए ही एक दुनिया में एक इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने रिकॉर्ड्स को पब्लिक करता है। कोई भी आदमी, अब तो उन्होंने ऑनलाइन कर दिया। जब मैंने किताब लिखा था तो ऑनलाइन इतने नहीं थे, तो मैंने उनके वहाँ जाके उनके अमेरिकन नेशनल आर्काइव में, मैरीलैंड में उनका उनका आर्काइव है, वॉशिंगटन से थोड़ा आगे बाहर जाकर के निकल के आता है, नेशनल आर्काइव है उनका वहाँ पे। वॉशिंगटन के अंदर भी है, लेकिन वहाँ स्पेस कम है, तो उन्होंने एक कॉलेज पार्क और यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के अंदर, कैंपस के अंदर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग लेके, क्योंकि रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा उनके पास है। मतलब उनके रिकॉर्ड कहते हैं इतने सारे हैं कि एक के बाद एक रखोगे तो दुनिया के सर्कल लग जाएंगे 7-8, इतने सारे रिकॉर्ड्स हैं अमेरिकन, बिलियंस के हिसाब से रिकॉर्ड्स हैं। तो स्पेस नहीं था वॉशिंगटन में, तो उन्होंने वहाँ मूव कर दिया। तो वहाँ मेरे ख्याल से 3rd 4th फ्लोर में सीआईए को उन्होंने कमरा दिया हुआ है। आई वेंट देयर, मैं तो इंडियन पासपोर्ट तो किसी को भी अलाउ करते हैं। उसमें कोई ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ 50 लफड़े होते हैं, वहाँ पे तो कोई लफड़ा नहीं होता। तो वहाँ जाके आप, उनके बड़ा सा सिस्टम कंप्यूटर रखा हुआ उन्होंने, उसमें आप सर्च कर सकते हैं इंटरनल, उसमें कितने 25-25 मिलियन रिकॉर्ड उसके ऊपर उस ज़माने में कितने थे मुझे पता नहीं। तो यू कैन गो एंड सर्च। तो आई गॉट लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स अबाउट लाल बहादुर शास्त्री एंड ताशकंद एंड ऑल दैट। तो उससे देखिए जो मोटी-मोटी 3-4 चीज़ें निकल के आ रही हैं। पहली तो सीआईए का जो असेसमेंट था लाल बहादुर शास्त्री के बारे में पॉजिटिव। So he was not being seen as a negative by them. So they were generally, you can say overall he was positive. अमेरिकन राष्ट्रपति जॉनसन जो था उसका भी व्यू ओवरऑल पॉजिटिव टाइप था। इनफैक्ट शास्त्री जी was supposed to go to अमेरिका आफ्टर दैट, आफ्टर ताशकंद। उनका 14-15 दिन के बाद में उनका जाने का प्लान था, और इनफैक्ट इंदिरा गांधी जी गई थी उसके बाद। शास्त्री जी नहीं जा पाए तो वो गई, अगली प्रधानमंत्री गए। और उसके अलावा उनकी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं कि जॉनसन अमेरिकन राष्ट्रपति ने क्या बोला शास्त्री के मन में, प्राइवेट बात है कि रिकॉर्डिंग में बड़ी तमीज से बात करी उन्होंने। ऊपर से उनके वहाँ पे उनकी स्टेटमेंट्स उनकी क्या दी गई हैं, उनके उनके कांग्रेस में और जगह पे, और इंटरनल डॉक्यूमेंट्स क्या बोल रहे हैं। तो वो कहानी बिल्कुल क्लियर है कि उनको अमेरिकन को कोई वो साफ, सिर्फ प्रॉब्लम की जड़ ये कि हमारे को रशियन साइड से, और ये हमारा जो अहिंसा के पुजारी हमारे बैठे हैं दिल्ली में, और ये सत्य अहिंसा के पुजारी, इन्होंने कागज को नहीं निकाला बाहर। लेकिन अमेरिका से काफ़ी इन्फॉर्मेशन निकल के आई है, मतलब थोड़ी बहुत, क्योंकि ये मुद्दा उनसे जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, और जहाँ हम लोग मार खा रहे हैं कि हमारे पास में ताशकंद या क्योंकि ऑब्वियसली देखिए कॉमन सेंस की बात है कि भारत का प्रधानमंत्री वहाँ जाके मरा है, अ, ताशकंद में, जो सोवियत रशिया के अधीन में था। तो ऑब्वियसली वहाँ की गवर्नमेंट के कोई बेचारा आके उनके उनके मर गया, वो अपना पूरा गट्ठा बना के रखेंगे, पूरा डॉजियर होगा उनके पास में इतना मोटा। कल को कोई कंट्रोवर्सी हो, कुछ हो, तो सब रिकॉर्ड्स होंगे, कौन आया, कौन डॉक्टर ने क्या किया क्या किया, ये पूरा गट्ठा बना करके केजीबी में फाइल पड़ी होगी अभी मॉस्को के अंदर। क्योंकि उन बेचारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी, उनके वहाँ के, अगर ये मान लो कि हार्ट अटैक से मर गए थे, उनके यहाँ के बंदा, कोई फॉरेन कंट्री का बंदा, वो प्राइम मिनिस्टर मर जाए, इस तरह की घटना मेरे ख्याल से दुनिया में कभी नहीं हुई कि फॉरेन विजिट में कोई फॉरेन डिग्नेटरी इस तरह की मर जाए, हेड ऑफ द गवर्नमेंट जाके मर जाए किसी फॉरेन कंट्री के अंदर। तो रशियंस ने वो पूरा बना करके रखा होगा। वही बात मैं अपनी किताब में लिख रहा हूँ, बार-बार मैं उसी को रिपीट कर रहा हूँ कि भैया आप अभी छोड़ो, अब इंदिरा गांधी को छोड़ो, अब कांग्रेस पार्टी को,
आप रशियन गवर्नमेंट से वो डॉक्यूमेंट मांगो, भैया वो डॉजियर हमको दे दो। लेकिन प्रॉब्लम है कि वो डॉजियर आपको क्यों दें? पहले आपको तो ये पूछेंगे तुमने तुमने अपना डॉजियर क्यों निकाला? आपके पास भी तो होगा। हमारे भी तो आईबी के लोगों ने पूरी रिकॉर्डें बनाई होंगी, भैया रामनाथ से पूछा होगा, उससे पूछा होगा, जब वो दिल्ली में लैंड किए होंगे। यहाँ तो आदमी का जब चालान कटा तो 1000 सवाल पूछते हैं आपके खानदान के बारे में। तो आप प्राइम मिनिस्टर मरने की बात है इतनी कमन, उन्होंने ऐसा रगड़ा होगा उसको, रगड़ करके उसको अटेंडेंट को, उसको दोनों को इन्होंने, इंटेलिजेंस वालों ने। वो कहाँ है रिकॉर्ड? आप अपने रिकॉर्ड तो बाहर निकाल नहीं रहे हैं। तो मैं रशिया से किस मुँह से रिकॉर्ड माँगूँ? आपके मेरे कहने से रिकॉर्ड तो देंगे नहीं वो लोग। अब सारी बात घूम फिर के वही आती है कि रिकॉर्ड वो देंगे नहीं। अब सीआईसी ने आपको ऑर्डर कर दिया है। आप जो है गांधी जी के पुजारी आप लोग ही हैं। अहिंसा और सत्य को सबसे बड़ा आप ही को पता है क्या होता है। जब आप ही आंसर नहीं दे रहे हैं तो हम लोग रशियन गवर्नमेंट से क्या बातचीत करेंगे? और दुनिया ऐसी बढ़ गई है हमारे आज के कि आप तो या तो आप इस पार्टी के फेवर में या खिलाफ में हो। तो हर एक आदमी उस सेंस में बात करता है ट्विटर में। ट्विटर में तो मैंने देख लिया करके। वो कभी उस पार्टी के खिलाफ में बोलेगा नहीं। ट्रूली इंडिपेंडेंट लोग जब यहाँ पे कोई नहीं है, या तो आप इस तरफ हो या उस तरफ हो। तो कांग्रेस वाले तो बोलेंगे नहीं, उनको तो फायदा होगा नहीं इस केस के ऊपर। भाजपा वाले भी चुप हो गए इस केस के बाद। जब उनसे मैं बोलता हूँ कि भैया तुम्हारी गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही डॉक्यूमेंट पब्लिक, उसको छोड़ तुम कांग्रेस पे अटैक करो वो अच्छी बात है, उसमें हम आपके साथ में हैं। लेकिन आपकी सरकार क्यों नहीं इसको पब्लिक कर रही है? चुप, भाग गए वो लोग। तो वही है ना, घूम फिर के बात तो वही आ गई ना कि पब्लिक जो है वो अपने दिमाग से चलती नहीं है। वो जो मीडिया में जो हंगामा होगा, पब्लिक तभी रिएक्ट करेगी। तो सीआईए के बाद बात आती है केजीबी का। मतलब देश भारत जो उस समय भी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र था, उसका एक प्रधान सेवक, प्रधानमंत्री एक विश्व के सबसे बड़े सुपर पावर, वन ऑफ द सेकंड सुपर पावर, वहां जाके मरता है। और तो क्या इसमें इतनी बड़ी हत्या अगर होती है, अगर हत्या होती है तो कोई बड़ा ही चीज इन्वॉल्व हो, तो क्या केजीबी ने मारा है क्या? ये उसमें अगर अज्यूमिंग फॉर द सेक ऑफ द आर्गुमेंट की हत्या हुई है तो केजीबी मारने, तो वो इस तरह की एलिगेशन दो, जैसे दहिया भाई पटेल का मानना था कि ये काम केजीबी ने करा। और वो कह रहे कि मैं रशियन गवर्नमेंट को भी ब्लेम नहीं करूंगा, लेकिन केजीबी ने किया। उन्होंने कुछ एग्जांपल दिए थे कि पास में हुआ था, केजीबी ने बंदे साफ कर दिए थे बिना सेंट्रल अपनी मॉस्को गवर्नमेंट से अप्रूवल लिए हुए था। या रशियन गवर्नमेंट को बहुत, मेरा मानना पॉसिबल नहीं है, बिना गवर्नमेंट के कंट्रोल के कोई ऐसा नहीं कर सकता। बट एनी उन्होंने मतलब रशियंस पर उंगली उठाई थी। ललिता शास्त्री ने मना किया, उसने कहा नहीं वो तो किसिगिन, जो अलेक्सी किसिगिन जो वहाँ के नेता थे, जो मेन जो ताशकंद में भी वहाँ पे मौजूद थे, कहती वो तो बड़े अच्छे आदमी हैं, मुझे तमीज़ से मिले थे, और रशिया वाले क्यों मारेंगे? और मारना ही है अपने घर में आके, क्यों कौन किसी को कौन मारता है? तो ये उनका मानना था। दया भाई पटेल का एक थ्योरी उन्होंने फ्लोट की थी कि उनको उनकी शास्त्री जी की मौत से ताशकंद अकॉर्ड के फेवर में देश में एक सिंपैथी जनरेट हो गई थी। ये मोटिव हो सकता है, फार फेच्ड है, लेकिन ये उन्होंने बात बोली है। मैं इस चीज़ से मेरे मेरा मानना है कि शास्त्री जी के केजीबी को मैं 2 कारणों से मैं मानता हूँ कि उनका हाथ नहीं था उसमें। वो बड़ा लॉजिकल है मेरे हिसाब से कि जिसने भी गलत काम किया है वो उसको छुपाएगा। वो उसके बारे में बात नहीं करने देगा। वो उसको इश्यू को बिल्डअप नहीं होने देगा। तो यहाँ प्रॉब्लम ये हो रही है कि रशियन गवर्नमेंट ने हमको पोस्टमार्टम का ऑफर दिया था, क्योंकि उनके वहाँ पे रूल्स थे पोस्टमार्टम के। खासकर तब जब डेथ जो है वो सस्पिशियस हो। उन्होंने कहा पोस्टमार्टम हम करने को राजी हैं। ये हम लोगों ने मना किया है। ये सत्य और अहिंसा के जो पुजारी हैं, इन्होंने मना करा कि हमें नहीं करवाना। तो पहली बात, अगर रशियन गवर्नमेंट ऑफर कर रही है इसका मतलब उनका दिल साफ है। दूसरा ये, उन्होंने बंदे अरेस्ट करे हैं। उन्होंने रात को 4 बजे ही मोहम्मद जान को और रशियन कुक्स को अरेस्ट कर लिया था। उनकी मोहम्मद इंटरोगेशन करी वहाँ पे। तो अगर उसने रशियंस ने ये काम किया, केजीबी ने अरेस्ट किया उनको। अगर उन्होंने ये काम किया होता, वो ये दोनों काम कभी नहीं करते। आप ये बोल सकते हैं कि बाद में अगर इश्यू को दबाया गया है तो उसमें उनका हाथ हो सकता है कि वो उनको फिर उन्होंने बाद में केस को नहीं खोला, उन्होंने फाइल को पब्लिक नहीं किया। दैट कैन बी अनदर थिंग ऑलटुगेदर। बट इन सो फार एज द डेथ पार्ट इज कंसर्न, उन्होंने अगर किया होता तो ये काम वो कभी पोस्टमार्टम आपको ऑफर नहीं करते। क्या नहीं खत्म है। अगर वो पोस्टमार्टम ऑफर कर रहे हैं, वो अरेस्ट लोग कर रहे हैं, अपनी तरफ से इंक्वायरी कर रहे हैं, इसका मतलब उनको उनका जेन्युइन था। प्रॉब्लम की जड़ हमारे यहाँ पे। सो अज्यूमिंग कि हुआ है, ऑब्वियसली इट्स एन assumption, तो क्या
नहीं, मैंने अजम्पशन नहीं, मैंने अपनी किताब में कारण दिया, अजम्पशन नहीं, मैं कोई काम अजम्पशन पे नहीं करता हूँ। मैंने कारण दिया है कि बहुत सारे कारण हैं। पहली बात, सरकार जो है झूठ बोल रही है पार्लियामेंट में, कई जगह पे पकड़ी गई वो। इन्होंने मोहम्मद जान को क्लीन चिट दे दी और खबर निकल के आ रही है कि मोहम्मद जान साहब अरेस्ट हुए थे, केजीबी ने उनको इंटरोगेशन की थी। अगर केजीबी भारत के दूतावास के किसी अधिकारी को पकड़ के उसकी इंटरोगेशन करती है, तो ऑब्वियसली एम्बेसडर साहब को पता होगा। अब टीएन कौन है तो किसी को बताया नहीं कि भैया मोहम्मद जान पकड़ा गया था। फिर आप उनको सर्टिफिकेशन कैसे दे रहे हो कि इस आदमी का करैक्टर बिल्कुल ठीक है? अगर करैक्टर ठीक था तो केजीबी पकड़ के क्यों ले गई थी? तो एक तो ये प्रॉब्लम आ रहा है। उसके अलावा ये लोग डॉक्यूमेंट पब्लिक नहीं कर रहे हैं। इन्होंने कोई फाइल पब्लिक नहीं करी है। ये सस्पिशंस आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त आ रहा है। नकली लेटर पे इन्होंने कुछ इंक्वायरी नहीं करवाई। मज़ाक की बात है, प्रधानमंत्री का नकली लेटर निकाल दिया। आप और मैं अपने राशन कार्ड में अगर एक एक्स्ट्रा लेटर डाल दोगे ना, हमको सूली पे लटका देंगे ये लोग पकड़ कर के लोग। आपको पता है कैसे गवर्नमेंट कैसे डील करती है? छोटी-छोटी बातों के ऊपर। आपके लेटर में किसी गवर्नमेंट के कागज़ में एक आपका एक बिंदी लग जाए ना एक्स्ट्रा, तो आपका जान निकाल देंगे लोग, आपकी सरकार घुमा-घुमा के आपको ये ठीक करा, वो ठीक करा, मानेंगे नहीं आपकी बात को। सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे ये हो रहा है कि जिस कंडीशन में उनकी डेड बॉडी आई थी, उसको देख कर के किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं है, अंधा भी देख के बता देगा कि भैया ऐसा प्रॉब्लम है। मैंने कोई 10 फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट जो लोग पोस्टमार्टम या उससे जुड़ी चीज़ें करते हैं, एम्बार्मिंग करते हैं डॉक्टर्स, मैंने 10 लोगों से बातचीत करी और उनको मैंने वो बात बताई जो मैंने सरकारी रिकॉर्ड्स में, जो भी सरकार ने इन्फॉर्मेशन दी है वो, और जो शास्त्री जी की मिसेज़ ने और या उनके फैमिली के लोगों ने या शास्त्री जी के और जानने वालों ने जो रिकॉर्ड पर लेकर आए। उन दोनों को मिला करके और फ़ोटोग्राफ्स उनकी मैंने उनकी कुछ कलर फ़ोटोग्राफ्स उस ज़माने में लाइफ़ मैगज़ीन ने खरीदी, उन्होंने खींची थी। तो कलर फ़ोटोग्राफ्स, ब्लैक एंड फ़ोटोग्राफ्स, वो सब उनको मैंने दिखा के बातचीत करी कि ये है तो आपका मतलब क्या है? क्या ये हार्ट अटैक के होने के बाद सर्दी के मौसम में क्या किसी मृत आदमी का शरीर मरने के 5-6 घंटे बाद या 8 घंटे बाद ऐसा हो जाएगा? सर्दी का मौसम और इस तरह की कंडीशन में मरा हो, ऐसे डॉक्टर को ये दवाई दी गई हो और उज़्बेकिस्तान का उस जगह का डिप्टी हेल्थ मिनिस्टर जो है उसका इंचार्ज रहा हो। उन सब ने मुझे बोला 10 के 10 ने कि ये ज़हर का मामला है। अब क्योंकि कंट्रोवर्शियल चीज़ है, हर एक आदमी अपना नाम नहीं लेना चाहता, तो मुझे 3-4 लोगों ने लिखित में आंसर दिया, तो उनको मैंने किताब में कोट किया। लेकिन मेरे को 8-10 लोगों से बातचीत करी, इंक्लूडिंग फॉरेन में, उन्होंने छूटते बोला कि ये ज़हर का मामला है। बॉडी की हालत ऐसी नहीं हो सकती। वो बॉडी उनकी ऐसे फूल गई थी। वो बॉडी फूलते हैं कहते हैं भैया, और गर्मी में फूलती है 48 घंटे बाद जाकर के, ये सर्दी में एम्बार्म करने के बाद बॉडी कैसे फूल गई? ऐसे किसी की बॉडी फूलती है यार, मरने के 6 घंटे बाद में। बॉडी फूल गई, पूरी की पूरी काली पड़ गई, वो नीली पड़ गई पूरी, यहाँ पे पत्थर की तरह टाइट हो गई है। फिर वो कट के निशान है, वो सबने देखे हैं, ये कैसे नहीं, ये कहते हैं नहीं है, गवर्नमेंट कह रही है नहीं है। मैं शास्त्री जी की वाइफ तो झूठ नहीं बोल रही भैया, उनके बच्चे झूठ नहीं बोल रहे। कौन अपना बच्चा अपने बाप के बारे में झूठ बोलेगा? उनके जो बड़े खासम खास दोस्त थे उन्होंने बोला, टीएन सिंह ने बोला है और लोगों ने बोला, उनकी फैमिली के लोगों ने बोला है, सब लोगों ने बोला है कि हम लोगों ने पीछे गर्दन के पीछे छेद देखा था, खून निकल रहा था। तो देयर इज़ नो रीज़न फॉर लाल बहादुर शास्त्रीज़ फैमिली टू टेल अ लाई। अगर उनकी मिसेज़, उनकी धर्मपत्नी ये बात को धर्मियों में कह रही है खुलकर कि उनके छेद था, खून निकल रहा था, लाल-लाल निकल रहा था। सरकार कह रही कोई छेद नहीं था। तो दोनों में से कोई एक सच नहीं बोल रहा। मेरा मानना सरकार सच नहीं बोल रही। मेरे को कोई रीज़न नहीं है कि मैं ललिता शास्त्री के ऊपर डाउट करूँ। वो क्यों अपने पति के बारे में ऐसी गलत बात बोलेगी? बेचारी वो तो बिल्कुल साधारण किस्म की औरत थी वो। वो क्यों झूठ बोलेगी? क्योंकि पॉलिटिशियन तो ना थी कोई। बाकी तो बोल देगा पॉलिटिशियन है, उसका लड़का पॉलिटिक्स में ये हुआ है। तो ललिता शास्त्री के ऊपर कोई आदमी नहीं कर सकता। आपने तो देखा उनकी फ़ोटो कितनी वो हमारे जैसे घरों में होती हैं अपनी माताएँ, वैसी बिल्कुल वैसी थी। तो वो छेद था, छेद में से खून निकल रहा था और लोगों ने देखा था। तो वो जो अपने मुझे फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने मुझे एक्सप्लेन किया, पैथोलॉजिस्ट ने, कि वो कहते हैं कि पोस्टमार्टम अगर पॉसिबल ना हो ना, पूरा फाड़-दाड़ करके, तो कुछ और तरीके भी होते हैं ज़हर पता लगाने के लिए। उसमें से एक तरीका होता है, अनयूजुअल होता है, लेकिन वो आपकी रीढ़ की हड्डी में से कोई चीज़ निकालते हैं, कोई लिक्विड टाइप होता है उसमें, उससे मालूम चल जाता है। तो यूजुअली वो आपके पीठ के नीचे से लगाते हैं। लेकिन अगर पीठ के नीचे से पॉसिबल नहीं हो पाया, तो गर्दन के नीचे भी वो छेद कराया जाता है, जहाँ पे ये छेद लगा था। तो इस तरह की बहुत सी बातें उन्होंने मुझे लिखित में दी हैं कि ये बॉडी ऐसे नहीं फूल सकती, ये तो उसी में फँस जाएँगे। तो
उसके बेसिस पे मैं आपको बोल रहा हूँ कि वो डेथ नेचुरल नहीं है। उसके अलावा और भी बहुत से कारण हैं, वो तो लेकिन है कि ये अपने आप में है कि जिस स्थिति में उनका शरीर था, वो शरीर किसी हार्ट अटैक में होने के बाद में, और एम्बार्मिंग की बॉडी ऐसी नहीं होती है। तो दिस इज़ माय कंटेंशन कि द डेथ वाज़ नॉट नेचुरल ऑन अवेलेबल एविडेंस। और एम्बामिंग भी आपने बुक में बताया कि सही तरीके से नहीं किया गया था, जो और सही उसमें तरह से नहीं किया, लेकिन कुछ का एलिगेशन ये था कि वो एम्बार्मिंग बॉडी को मतलब डिकम्पोज करने के लिए किया गया था। वो जानबूझ के अंदर का स्टमक को वॉश करने के लिए किया गया था। वो उसका हो सकता है कि उन्होंने एम्बार्मिंग ढंग से करी हो, लेकिन ज़हर का असर बाद में आ गया होगा। नहीं, क्योंकि उसमें स्प्रिट ज़्यादा था और फॉर्मेलिन जो है वो कम था। ये तो वो बात, हाँ, ये तो डाटा के बेस से बताया जाए, लेकिन उसके काउंटर में और लोगों ने और बातें बोल सकते थे कि यस, एम्बार्मिंग ढंग से नहीं हुई। मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि रशिया में एम्बार्मिंग अगर खराब भी होगी तो यार 6-8 घंटे में तो ना शरीर इतना फ़र्क पड़ जाएगा। कहीं न कहीं तो गड़बड़ है ना। और वो जो डॉक्टर जिसने एम्बार्मिंग की थी, जिसने जो उनका हेड था, जो उज़्बेकिस्तान का डिप्टी हेल्थ मिनिस्टर था, बड़ा मशहूर आदमी था बाद में। वो माशाअल्लाह 1998 तक उसके नाम छपते थे अखबारों के अंदर। उज़्बेकिस्तान के अंदर काफ़ी मशहूर डॉक्टर थे वो। तो एम्बार्मिंग करना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना। आपको लिक्विड डालना है, लिक्विड डाल के भेज दिया आपने। वो क्यों नहीं करा सके ढंग से? इसका मतलब गड़बड़ है कुछ ना कुछ। ये कह रहे हैं कि वो छुपाने के लिए किया। अच्छा। तो उसी समय की बात है कि 2 डेथ सर्टिफिकेट आता है, एक रशियन वर्ज़न में, एक इंग्लिश वर्ज़न में आता है, दोनों में सिग्नेचर में कुछ हेर-फेर होता है। वो एक देखिए, उसका प्रॉब्लम ये हो पा रहा है कि क्योंकि मेरे हाथ में वो डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल 2 नहीं, तो मैं आई कैन नॉट से एनीथिंग। उसमें 2-3 बातें थी। गवर्नमेंट ने एक्सप्लेन की उसमें था कि उसमें ओरिजिनल रशियन में 6 डॉक्यूमेंट डॉक्टर्स ने साइन किए और दूसरे में 8 ने किए। तो वो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जब वो या 8 उसने किए या 6 उसने किए, तो उसने कहा था कि हमने जो 8 में बनाया तो ओरिजिनल था। जब उसका ट्रांसलेशन हिंदी में हुआ, इंग्लिश में हुआ, तो वो आठों के आठों नहीं मिले तो 6 से करवा लिया। लेकिन प्रॉब्लम है कि एक एलिगेशन ये भी लगा था कि कोई एक डॉक्टर का नाम अंग्रेजी के ट्रांसलेशन में आ रहा है गॉर्डन का, जिसका नाम ओरिजिनल में नहीं है। तो वो एलिगेशन ज़रा खतरनाक है। उस आदमी का नाम ओरिजिनल मान लीजिए 8 डॉक्टर ने साइन किए। इंग्लिश ट्रांसलेशन में आपके 6 डॉक्टर ने साइन किए। तो उसमें उन्होंने गवर्नमेंट ने एक्सप्लेन किया कि 8 ने साइन किया था ओरिजिनल, लेकिन जब इंग्लिश ट्रांसलेशन करने में थोड़ा टाइम लगा तो उस टाइम तक वो 2 नहीं डॉक्टर रही होंगे, तो 6 ने कर दिया। वो समझ में आता है। लेकिन उन किसी ये बात उछली थी बीच में कि एक डॉक्टर का नाम आ रहा है अंग्रेजी ट्रांसलेशन में, जिसका नाम रशियन ओरिजिनल में डॉक्टर नहीं है। अब प्रॉब्लम ये है कि जब तक मेरे हाथ में वो सर्टिफिकेट नहीं होगा, मैं आप तब तक आपको वो पढ़ के नहीं बता सकता। अब वो चक्कर है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो गवर्नमेंट दे नहीं रही है हमारे को, तो मैं कैसे कर सकता? द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर अ रिसर्चर इज़ कि इन्फॉर्मेशन अवेलेबल गवर्नमेंट नहीं करा रही। तो सरकारी कागज़ नहीं दे। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। तो इंडिया पे आते हैं। अब ये साबित हो गया आपके अनुसार कि सीआईए ने नहीं किया था, केजीबी ने नहीं किया था। तो इंडिया में किसी ने किया होगा। तो एक स्टेटमेंट जो आपने बुक में दे रखा है, शायद राजनारायण ने बोला था कि वो हमारे घर का नौकर प्रधानमंत्री बन गया और मैं ऐसे ही रह गई। ऐसा इंदिरा गांधी ने बोला था, जिसको राजनारायण ने कोट किया था संसद में। तो क्या अगर हम इंदिरा गांधी और लाल बहादुर के रिश्तों को करीबी से देखें उन दिनों में, तो हम इस केस को सुलझाने में कुछ मदद मिल सकती है क्या? एक्चुअली वो एलिगेशन लगाए गए थे कि वो था कि उनके दोनों के रिश्ते अच्छे नहीं थे। अब उसमें कुछ ज़्यादा हमको रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों ने रिसर्च करी है, मैं उन्हीं की रिसर्च आपको बताता हूँ। और जिनको मालूम था, कुलदीप नैयर हो गए और अपने और उस ज़माने के और पत्रकार 1-2 वहाँ पे। तो ये अब साबित हो गया कि उनके रिश्ते आपस में अच्छे नहीं थे। एक कंटिन्यूटी के लिए इंदिरा गांधी को शास्त्री जी ने कैबिनेट में रखा हुआ था और उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम वो देते थे नहीं, और उनका दिल ये था कि इसको हाई कमिश्नर बना के लंदन भेज देंगे, जहाँ पे वो खुश भी रहती वो। तो उनके आपस में रिश्ते ठीक नहीं थे, दैट इज़ नंबर 1। उसमें तो कोई डिस्प्यूट नहीं है, बट उसका मतलब ये नहीं कि मैं मरवा दूँगा आपको, अभी कैसे? पॉसिबल नहीं है। दूसरा है कि शक के घेरे में आ रहा है टीएन कॉल, कि उसके हिसाब से कुछ गड़बड़ हुई है, कि वो ही उसी का कुक वहाँ पे गया था जिस पे लोगों ने उँगली उठाई है। टीएन कॉल का बिहेवियर जो है वो ठीक नहीं है। फिर उसको प्रमोशन मिल जाती है, वो फॉरेन सेक्रेटरी बन जाता है। फॉरेन सेक्रेटरी बनने के बाद में वो कुलदीप नैयर को हड़काता है कि भैया तू इसके खिलाफ में स्टेटमेंट दे। और यही बातें इंदर मल्होत्रा ने, जो इंदिरा गांधी के बायोग्राफर थे, बड़े जाने-माने जर्नलिस्ट हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर थे। इंदर मल्होत्रा जी ने भी ये बात बोली है कि उनके रिश्ते अच्छे नहीं थे आपस में। तो वो तो साबित हो जाता है।
उसके अलावा तो एक ही, लेकिन उससे अनफॉर्चुनेटली उससे ये बात बोलना कि उनका उसके डेथ से लिंक है, वो करने के लिए तो कोई डॉक्यूमेंट या कुछ तरह का एविडेंस तो सामने नहीं है ना। मतलब इतनी बड़ी बात, मतलब छोटा-मोटा किसी पे लगाना हो तो समझ में आता है। तो कि मैं इंदिरा गांधी सरकार पे ये इल्ज़ाम लगाता हूँ कि इन्होंने इश्यू को कवर अप किया, उसका प्रूफ मुझे मिल रहा है। उसके आगे का प्रूफ मेरे को नज़र नहीं आ रहा। अगर होता तो मैं लगा देता। क्योंकि इतना बड़ा लगा के हम भी देखो, ये किसी की मौत का इल्ज़ाम लगाना महापाप है अगर गलत हो जाए तो। हम भी सोच, मुझे भी तो मरने के बाद में ऊपर भगवान को शक्ल दिखानी है ना। मैं किसी पे इल्ज़ाम लगा दूँ कि साहब उसने किया, कोई इतने बड़े, वो भी जो देश के प्रधानमंत्री रही हो, और वो गलत हो। बाकी बातें छोड़िए, मुझे जाके ऊपर वाले को शक्ल दिखानी है मरने के बाद में। मैं पाप करके अपने नरक में जाऊँगा क्या? तो मुझे नहीं मालूम। तो मुझे जब कन्फर्म होगा तब बोलूँगा कि हाँ, मेरे पास में सबूत है कि डायरेक्ट एविडेंस दिखा रहा है कि एलिगेशन लगाया गया, इंदिरा गांधी जी का नाम लिया गया। जैसे उसमें एक एलिगेशन ये था कि हाँ, जब तक जैसे एक बड़ी एक जैसे उसमें, अब वो इंदिरा गांधी जी जो थी, शास्त्री जी से बहुत अच्छा इक्वेशन नहीं था, वो आपको उसी में समझ में आ जाएगा कि जब उनकी एक रील है उस ज़माने की, अगर आप देखेंगे वीडियो रील, जब शास्त्री जी की बॉडी को यहाँ लाया गया था, तो उसके वीडियो आपको मिल जाएँगे। आप ढूँढेंगे आपको यूट्यूब में। मैंने ही उसको ट्विटर में डाल के डाला था बीच में। तो उसमें इंदिरा गांधी जी हँस रही थी बीच में, मतलब उनको स्माइल कर रही थी। अब कोई किसी की डेड बॉडी लाता तो लोग स्माइल नहीं करते। तो उनको कुछ मुस्कान सी मुँह में आ रही थी करके। उनके आस-पास के लोग भी द दाँत दिखा रहे थे। आज के ज़माने में होता तो उनको हम मारे जाते ये लोग। तो पॉइंट ये है कि कुछ गड़बड़ था, ये था, लेकिन इतना बड़ा एलिगेशन को साबित करने के लिए तगड़ा एविडेंस चाहिए ना। एविडेंस क्या है हमारे पास में? हाँ, लेकिन मैं ये एलिगेशन तो मैं लगा रहा हूँ कि भैया कवर अप हुआ। कवर अप इंदिरा गांधी के टाइम पे कवर अप हुआ, पूरे केस को कवर अप किया गया। इतना बोल सकते हैं, बाकी आगे उसके आगे बोलना ज़रा बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये हाँ, ये मेरा कन्फर्मेशन है कि डेथ का जो 3 थ्योरियाँ हैं, अमेरिकन्स ने नहीं मारा, रशियंस ने नहीं मारा, जो गड़बड़ हुई है वो भारत की तरफ से गड़बड़ हुई। ये तो मैं इतना तो कन्फर्म मैं करता हूँ, मेरे हिसाब से, मेरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से। क्योंकि हम लोगों ने झूठ बोलना है पार्लियामेंट में, हम लोग हैं जो कागज़ नहीं दिखा रहे हैं, राइट। हम अच्छा। लोग हैं झूठी झूठी इन्फॉर्मेशन फ्लोट कर रहे हैं, और हम ही वो लोग हैं जो ढिंढोरा पीटे दुनिया भर में कि भैया सत्य और अहिंसा के पुजारी, हमसे बड़ा कोई दुनिया में है नहीं कोई। अपने ही प्रधानमंत्री की डेथ पे तुम झूठ बोल रहे हो और दुनिया को लेक्चर दे रहे हो सत्य और अहिंसा के। अच्छा। तो भगवंत जी ने शास्त्री जी का जिक्र किया आपके पिछली बुक जो मैंने पढ़ा था। तो उन्होंने बोला था कि उन्होंने जिक्र किया था कि आई टोल्ड शास्त्री, आई मेंशन दैट शास्त्री शुड नॉट हैव गॉन टू ताशकंद, वहाँ खतरा हो सकता है। तो वो भगवंत जी का क्या विचार था, और देखो, अगर उस लिंक को देखें तो क्या? भगवान जी मतलब आपके गुमनामी बाबा, हाँ, गुमनामी बाबा गुमनामी मतलब बाबा, यस। सुभाष चंद्र बोस। या ये के वो अलग सुभाष चंद्र कहानी, बोस। हाँ। वो हाँ। उन्होंने ये बोला कि उन्होंने 4-5 बातें बोली है। उन्होंने ये बोला कि डायरेक्टली बातचीत नहीं हुई है। मुझे अभी आई एम नॉट वेरी क्लियर कि इसमें कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है कुछ उनके। कॉन्फ्लिक्ट पहला ये आ रहा है, 55-56 के आस-पास लाल बहादुर शास्त्री शायद उनको मिलने आए थे। अब शास्त्री जी को शायद नहीं मालूम चला पर्दे के पीछे थे क्या था, मुझे पता नहीं। तो ये इंडिकेशन कहीं से आ रहा है। आई कैन नॉट कन्फर्म दैट। लेकिन यहाँ कम से कम 66 के आस-पास तो उनसे नहीं मिले। तो उसमें कुछ वहाँ पे कन्फ्लिक्टिंग वर्जन्स आ रहे हैं, तो आई एम नॉट एबल टू मेक अप माई माइंड कि किसको मैं सपोर्ट करूँ। उन्होंने ये बोला कि उनके कुछ बीच में चैनल्स थे बातचीत करने के, डायरेक्टली बातचीत नहीं हुई है, बीच में चैनल्स के थ्रू बातचीत हुई है। किसी और को बोला, उसने बोला। तो मैंने उन्हें कन्वे किया था कि तुम ताशकंद में मत जाओ, ताशकंद में है जो भी होना है वो पहले से डिसाइड हो चुका है और हमारे फेवर में नहीं। और उनका मानना ये था कि नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दों में इंदिरा गांधी जो थी, उनकी समझ शास्त्री जी से और पंडित नेहरू से काफ़ी अच्छी थी। तो ये उन्होंने बैकहैंड मुझको कॉम्प्लीमेंट दिया इंदिरा गांधी को, कि नेशनल सिक्योरिटी के मामले में वो समझती थी ज़्यादा, इनकी समझ थोड़ी कम थी। तो ही वाज़ क्रिटिकल ऑफ लाल बहादुर शास्त्री टू द इफेक्ट कि इसने पूरा नहीं समझा। बट ही वाज़ सिम्पैथेटिक, उनको डाउट था उनकी डेथ के बारे में। और बेसिकली वो गई ताशकंद का अकॉर्ड जो था वो हमारे फेवर में नहीं था। दैट्स व्हाट ही फेल्ट। और उसके ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मेरे हाथ में लगेगी। तो इसमें एक और जो आपने अपने बुक में मेंशन किया है, धर्मा तेजा,
जो अपने जमाने का ललित मोदी था। उससे ऊपर था बहुत। ललित मोदी तो ये क्या है, तो ये छोटे-छोटे लोग हैं। ये ललित मोदी है, आजकल लंदन में बैठा हुआ है। धर्मा तेजा तो बहुत आगे था, वो तो ओरिजिनल चीज़ थी वो। राइट। उसके स्कैंडल बहुत सारे हैं। तो पहली बीवी मर गई, दूसरी बीवी पकड़ ली, उसके फिर वो रंगरलियाँ कराते थे यहाँ पे आके वो 3 मूर्ति में, बड़ी-बड़ी कहानियाँ हैं वो तो। ऐसा तो कोई ये इन्होंने तो ऐसा काम किया नहीं आज तक। आप जो भी विजय मल्ल्या का बोले, विजय मल्ल्या कभी प्रधानमंत्री घर में आके पार्टियाँ अटेंड नहीं करता था। वो तो बहुत आगे की चीज़ है धर्मा तेजा। फिजिक्स था, न्यूक्लियर फिजिक्स का, तो न्यूक्लियर पे उसने काफ़ी उसमें अच्छा लिखा, मतलब ही वाज़ वेरी कैपेबल पर्सन। फॉरेन में था, पहले बाहर में था, किसी अमेरिकन उसकी बीवी थी पहले, वो उसकी बीवी पहले मर गई। किसी को डाउट हुआ कि शायद मार ना दिया उसने कहीं। फिर दूसरी बीवी उसकी शादी हुई है और उसका आंकड़ा जो था वो पंडित जी से काफ़ी अच्छा था। जयंती कौन-सी वो ट्रस्ट बनाई थी उन्होंने, शिपिंग ट्रस्ट बनाई थी उन्होंने करके। वो उसका नाम, लेकिन उसकी शास्त्री जी से उसका आंकड़ा खराब हो गया। तो शास्त्री जी ने उसका उस पे स्क्रू टाइट किए थे। फिर वो देश छोड़ के भाग गया। जैसे ये भागा अभी हमारे आजकल 3-4 भागे और इतना प्रेशर पड़ा और कि इनको पकड़ना पड़ा बीच में। फिर आया, फिर भाग गया करके। लेकिन इनकी बातचीत तो गांधी फैमिली से काफ़ी अच्छे लिंक थे। इसको संजय और राजीव इसको तेजा अंकल बोलते थे और ये इनका गार्डियन टाइप था वहाँ पे लंदन के अंदर। तो यहाँ पे उसका आंकड़ा खराब था कि वारंट उसके पीछे लगा दिया सर उन्होंने करके। तो कुछ लोगों ने पार्लियामेंट में ये एलिगेशन लगाया, जिसमें से इवन एल के अडवाणी भी थे, कि जब ये और धर्मा तेजा का दोस्त था ये टीएन कॉल, और कि जब शास्त्री जी की डेथ हुई है उस टाइम के या उसके आसपास धर्मा तेजा मॉस्को में था। तो सरकार ने बोला कि नहीं, ताशकंद में नहीं था। उसने कहा जी मॉस्को में था कि नहीं था, तो उसका आंसर उन्होंने नहीं दिया उन्होंने। हुँ। और ये भी था कि उन्होंने बोला कि नहीं आप कंफ्यूज कर रहे हो, वहाँ पे डॉक्टर डीएस तेजा नाम करके हमारे विदेश मंत्रालय के बहुत बड़े अफसर हैं, उनकी बात आप कर रहे हैं, एम्बेसडर तेजा। तो ये भी कुछ डाउट था कि ये तेजा कौन-सा है? ये गवर्नमेंट ने बोला कि आप उस तेजा की बात कर रहे हैं, ये तेजा और है। लेकिन पार्लियामेंट में काफ़ी लोगों ने ये एलिगेशन लगाया था कि धर्मा तेजा वाज़ प्रेज़ेंट इन मॉस्को or in Soviet Russia sometime before Shastriji's death. So they were trying to link Dharma Teja to the death through the ambassador T.N. Kaul, and T.N. Kaul was linked to Indira Gandhi because he was her relative. तो लोग वो चेन बनाने के चक्कर में थे, वो चेन मतलब बनी है ऐसे करके। इस चेन में 3-4 लोग थे कि यहाँ फैमिली है, बीच में टी.एन. कौल साहब है और बीच में इंटरलिंक है आपका धर्मा तेजा। धर्मा तेजा वाज़ अ नोटोरियस कैरेक्टर, बट ही वाज़ वेरी क्लोज टू द गांधी फैमिली एंड ही वाज़ क्लोज टू टी.एन. कौल आल्सो। हुँ, आज के ज़माने में होता तो इस पे इंक्वायरी हो जाती। राइट। अब चक्कर है कि सब लोग चले गए, खत्म हो गए, तो क्या इंक्वायरी करना है। हुँ, मैं रिसर्चर हूँ, हम लोग की लिमिटेशंस होती है, हम तो सीबीआई तो इंक्वायरी कर सकते नहीं। हाँ, लेकिन ये पक्का कि ये कि किसी और केस में अगर ऐसी बात मिल जाए, तो सीबीआई वाले घर से उठा के ले जाएँगे पूरे खानदान को धर्मा तेजा के। हमारे यहाँ ये तो दोगलेबाजी होती है ना कि अपने को जो सूट करेगा तो गवर्नमेंट 50 इंक्वायरियाँ करवा देगी आपको, और जो सूट नहीं करेगा तो कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, डॉक्टर चुग की बात आती है बार-बार। तो डॉक्टर चुग है और उसमें रामनाथ जो कुक हैं, तो उन लोगों की जो मौत होती है और डॉक्टर चुग, रामनाथ तो बच जाते हैं, लेकिन डॉक्टर चुग का एक ट्रक उनके कार पीछे से आके उनको कार में धक्का मार देता है, रामनाथ का मर जाते हैं। मुझे कोई डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। रामनाथ के बारे में मेरे को जो शास्त्री के परिवार ने बताया मैंने आपको बता दी। वो ही बता सकता हूँ कि वो उनके घर में आए थे। उन्होंने बोला कि मैं अब बात को खोलूँगा, ऐसे करके हुआ था। वो ये था कि अपोज़िशन मेंबर्स ने इस मुद्दे को 70 में वो उछाला था, पहले भी उछाला था। करते इमरजेंसी कंट्री में आ गई। इमरजेंसी में कोई बोलने का सीन था नहीं कुछ करके। उसी दौरान में नेताजी वाला इश्यू बहुत उछल गया था करके, और इनफैक्ट जो लोग नेताजी की बात करते थे वही शास्त्री की बात भी कर रहे थे करके। और नेताजी पे कमीशन बन गई 1970 में। लोगों ने कहा शास्त्री की बनाओ, गवर्नमेंट ने बनाई नहीं। वो नेताजी कमीशन की रिपोर्ट आ गई 1974 में आकर के। अब वो 75-76 में वो डिस्कशन हुआ उसको लेकर के। लेकिन सारे ऑपोजिशन वाले जेल में थे। उन्होंने कहा जी हम इसको बाद में, जब इलेक्शन के बाद में जब नई सरकार आएगी तब हम सारे ये केस खोलेंगे। तो एक देश में माहौल बन गया था कि अगर ये इलेक्शन में इमरजेंसी के बाद इलेक्शन होने वाले हैं, इसमें अगर ये इंदिरा गांधी हार जाती हैं तो हम पुराने केस खोले जाएंगे। तो उसी में मुद्दा ये हवा चल रही थी कि कोई एक नई कमेटी बना के खोलेंगे केस को। तो ये रूमर्स वगैरह थे कि ऐसी कमेटी बनेगी, कुछ होगा, राजनारायण को बना देंगे उसका हेड, की वो बहुत पूछ रहा है, बात वो कर रहा है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में कहा जाता है कि शास्त्री के परिवार ने बोला कि रामनाथ जो था वो इनके घर में आया था और उसने कहा था कि मेरा टाइम आ गया कि मैं बोलूँ, माहौल बदल गया देश का, वट।
तो जब वहाँ से जा रहा था तो उसके ऊपर ट्रक वाक ने टक्कर मारी है, उसके कुछ चोटें-वोटें लगी, उसका पैर चला गया। उसके बाद फिर वो डर के मारे उससे कुछ बोला नहीं वो। तो ये उनकी फैमिली का बोलना है, मुझे कोई इसकी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं किसी रामनाथ की फैमिली को मिला नहीं, तो आई कैन नॉट कन्फर्म। बट डॉक्टर चुग का मुझे इन्फॉर्मेशन है। डॉक्टर चुग का पता है कि डॉक्टर चुग राजघाट के पास में वो गाड़ी में थे, उनकी मिसेज़ थी, उनका लड़का था, उनकी लड़की थी, शोभा। तो पीछे से ट्रक ने टक्कर मारी। ठीक था, डॉक्टर साहब बाहर निकले देखने के लिए क्या हुआ है। ट्रक ने फिर टक्कर मारी और थोड़ा सबको उड़ा दिया। डॉक्टर चुग चले गए और ये था इलेक्शन से 2 दिन पहले 77 75 77 या इलेक्शन से पहले था या रिजल्ट आने के 2 दिन पहले, मतलब उस टाइम गवर्नमेंट कांग्रेस की थी ये, बिल्कुल लास्ट स्टेज पे थी। तो और उसके बाद में वो डॉक्टर चुग चले गए, उनकी मिसेज़ चली गई, उनका लड़का चला गया। लड़की की हालत काफ़ी ख़राब थी, तो वो लड़की ज़िंदा है अभी भी, दिल्ली में कहीं है। तो वो तो ये तो एक्सीडेंट तो नहीं लगा ना कि आपने पहले टक्कर मारी, फिर बाहर निकला तो फिर टक्कर मारी, इसका मतलब तो और इसका डॉक्टर चुग जो है वो गाड़ी में नहीं थे, वो गाड़ी के बाहर से जब टक्कर मारी गई है दोबारा तो इस पे तो थोड़ा डिटेल रिकॉर्ड पुलिस के पास में होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड है, रिलेट कर सकते हैं कि फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू टू इंदिरा गांधी टू राजीव, ऑल बिकेम पीएम इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। तो क्या कोई एक कोइंसिडेंस है कि एक पैटर्न है इंडियन पॉलिटिक्स का? कॉन्फिडेंस होगा पता नहीं, इसमें तो आई कैन नॉट अप्लाई माय माइंड टू इट। कुछ होगा, कोई सितारों का मेल होगा, कुछ ऐसे ही बनेंगे। ओके। मेरे लिए बड़ा मुश्किल है ना, मैं तो रिकॉर्ड पे चलता हूँ जी, रिकॉर्ड पे कुछ कोई चीज़ होनी चाहिए। जैसे हम आपका इंटरव्यू बन रहा है, कल को मेरे पे कोई एलिगेशन लगा दे कि आपने इसकी बात बोल दी, क्या नाम है, अपने चुप वाली बात है, तो मैं अपना दिखा दूँगा भैया मैंने कहाँ से उठाई है मैंने। मैं कोई अपने घर की बात तो बता नहीं रहा किसी को। मेरे पास प्रूफ है, हर चीज़ के लिए प्रूफ है। तेजा वाला प्रूफ सब पड़ा हुआ है। तो जो जिस चीज़ को प्रूफ मान सके, कोई जो रिसर्चर किताबें लिखते हैं या अपनी बात रखते हैं, सबके रिकॉर्ड्स डाटा, तो मैं तो डाटा पे चलता हूँ, डाटा जब वो बोलेगा वैसा बोलूँगा। तो जो डाटा दिखा रहा है शास्त्री वाले केस में, मैं बोल रहा हूँ आपके सामने। अब उससे पहले क्या था मुझे पता नहीं। So can our generation see the closure of case of Netaji and Shastri ji in our lifetime? आपको क्या लगता है केस किस नहीं, रिजॉल्व हमारी हो? लाइफ टाइम तो भगवान भला करे, हमारी तो अभी उम्र लंबी है। आगे पता नहीं क्या होगा। हो सकता है आगे, मुझे उम्मीद है कि अगर हो सकता है फॉरेन कंट्री वाले आर्काइव खोल दें अपने। हमारा लाइफ टाइम तो लंबा है, हो सकता है 10 साल बाद रशिया वाले तो फाइल खोल के निकाल के दे दें हमारे को। हो सकता है बाहर से आ जाए, वो चांसेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं मुझे कि फॉरेन कंट्री वाले डीक्लासिफाई कर दें कोई पेपर, अमेरिका वाले कर दें, वो कर दें, ये कर दें, शायद उससे खुल जाए। यहाँ से तो निकालना बड़ा मुश्किल है। यहाँ पे सरकार का तो इरादा तो नहीं है करने का। अभी तक तो कुछ इरादा है नहीं, तो अभी तक तो लेकिन ये है कि उम्मीद कर सकते हैं, हम लोग कोशिश करते रहेंगे। अभी हमारा एक तरीका और भी होता है कि सच अगर ना भी आए तो अगर आप जनता के सामने इन्फॉर्मेशन रख दें, क्योंकि नई जनरेशन जो है ना वो पहले के मुकाबले काफ़ी अच्छी है। जो आज से 20-30 साल पहले की जनरेशन थी, उसमें खासकर जो मिडल एज किस्म के जो लोग थे वो सारे फ़िल्में देख कर के अपना टाइम पास करते थे। आजकल की यंग जनरेशन काफ़ी इंटेलिजेंट है, वो अपना पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं चीज़ों को। तो माहौल चेंज हो रहा है, तो मुझे पता नहीं आज से 500 साल बाद क्या देश में क्या माहौल होगा, देश का लीडर कौन होगा, सिचुएशन कैसी होगी। तो वी कैन ऑलवेज़ होप। इन द मीनवाइल इश्यू को ज़िंदा रखने के लिए और पब्लिक की मेमोरी में रजिस्टर करने के लिए, जैसे आप ये अभी वो रजिस्टर कर रहे हैं, आपने प्रोग्राम बनाया पूरा इस पे, और लोग कर रहे हैं। ताशकंद फाइल फिल्म आ गई, फिल्म की लाइफ बहुत लंबी होती है, तो फिल्म तो लोग 10-20-30 साल तक लोग देखेंगे आगे करके। तो हम लोगों ने इश्यू को रीबूट कर दिया नई जनरेशन के लिए। इनफैक्ट इस तरह की डिस्कशन आज से 20 साल पहले तो ये मीडियम में नहीं था, लेकिन डिस्कशन तो कभी खुल के हुई नहीं ना। तो उम्मीद तो कर सकते हैं कि आने वाले टाइम पे ये मुद्दे खुलेंगे, और ये मुद्दे कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं एक-दूसरे के साथ में। और शायद ये गवर्नमेंट को डर भी है कि अगर हम नेताजी का मुद्दा खोलेंगे तो शास्त्री वाला भी खुल जाएगा। तो से फँस जाएँगे वो लोग। तो कहीं न कहीं ये है, उसमें उसको लेकर के तो कि उम्मीद तो करते हैं फ्यूचर में कि माहौल चेंज होगा, कुछ ना कुछ होगा। नहीं तो जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जैसे हम लोगों ने अपने बड़े बूढ़ों से सुना था, हम लोग आने वाली जनरेशन को हम सिखा के जाएँगे।
उन बेचारों को तो एनसीईआरटी वाले तो कुछ बताते नहीं है। वो हम उनको तो जो ज्ञान हमारे पास में, हम चाहेंगे कि हमारे से ज्ञान जो है आने वाली जनरेशन को लगे। हम लोग वो ज्ञान लोगों को बाँट रहे हैं। आफ्टर ऑल जो अंडरस्टैंडिंग शास्त्री वाले केस को लेके अभी है, वो अंडरस्टैंडिंग 10 साल पहले नहीं थी। तो वी विल हमारी आपकी मेरी ड्यूटी है कि इन्फॉर्मेशन को डिसेमिनेट करें, लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ। तो आने वाले टाइम पे देखो। So what could be the next step that our government should take to resolve this case? Yeah, our government should declassify all the information, all the records, everything else. They should set up a committee in the PMO, क्योंकि ये मजाक नहीं है, प्रधानमंत्री के मरने का मुद्दा। कोई कमेटी बनाए जिसका इंचार्ज प्रधानमंत्री खुद हो, और वो सारे रिकॉर्ड इंटेलिजेंस ब्यूरो से पूछो, RNW से पूछो, ये सब रिकॉर्ड निकालो। और रिकॉर्ड निकालने के बाद आप उज़्बेकिस्तान से रिकॉर्ड मांगो, और रशियन गवर्नमेंट से मांगो, अमेरिकन से मांगो, उनके पास भी होंगे कुछ ना कुछ। आखिर में रशियन गवर्नमेंट से उनको बोलो वो डॉजियर हमको दे दो। तो कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप उनसे अपना रिकॉर्ड बाहर निकालो, उनका रिकॉर्ड मांग लो, और जो रिकॉर्ड निकलता है उसको ठप्पा मार के उसको छाप दो, पब्लिक के सामने दिखा दो। और क्या करना है इसके अंदर? So they should declassify all the papers. They should release all the papers, especially with those with the intelligence organizations. जितना आपके मेरे दिमाग में सवाल उठते हैं, उससे कई लाख गुना सवाल इंटेलिजेंस वालों के दिमाग में सुबह शाम घूमते रहते हैं। तो आपको लगता है कि इन लोगों ने कभी इंक्वायरी नहीं करी होगी इस बात पर? कभी सोचना इनके दिमाग में कभी आया नहीं होगा कि हमारा आदमी, हमारा प्रधानमंत्री को मार दिया क्या बाहर जाकर? और अगर ये सवाल उनके दिमाग में नहीं आया, इसका मतलब उन पर प्रेशर है पॉलिटिक्स। क्योंकि इनकी फितरत होती है सवाल पूछने की। ये तो वो आईबी में नौकरी क्यों करेंगे? एमसीडी में चले जाएंगे। एमसीडी में अच्छा उल्टा काम दाम अच्छा होता है, पैसे बनते हैं ऊपर के। जो जरा आईबी में नौकरी कर रहा है तो उसकी क्यूरियोसिटी होती है, उसकी जानने का वो होता है। तो सरकार को अपने वही करना चाहिए कि जितने डॉक्यूमेंट्स हैं बना के, और अगर बन सकता है तो उसके लिए एक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में कमेटी बना दे, जिसका इंचार्ज प्राइम मिनिस्टर खुद हो, क्योंकि प्रधानमंत्री के मरने का मुद्दा है, तो मजाक नहीं है। और जितने इन्फॉर्मेशन, जितने डॉक्यूमेंट उनके बारे में है, खासकर इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के पास में, आईबी और ऑ के पास में, मिलिट्री इंटेलिजेंस के पास में अगर है तो वो निकालें। फिर फॉरेन कंट्री के पास जाएं, अमेरिकन से मांगे, इंग्लैंड से मांगे, क्योंकि उनके पास में इन्फॉर्मेशन इस तरह की होती है अच्छी। उज़्बेकिस्तान से लें, क्योंकि ताशकंद उज़्बेकिस्तान में, शायद वहाँ पे उसका रिकॉर्ड पड़े हो, और वो डॉक्टर जो थे एम्बार्मिंग करने वाले एक्सेट्रा, वो वहीं पे थे, उज़्बेकिस्तान में थे, जिंदा थे बाद में। और रशिया से फिर बोले कि अपना केजीबी का जो आपका डॉजियर है इस पूरे केस का, वो हमको पकड़ा दो। सो आप अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं कि व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान रिगार्डिंग दिस शास्त्री केस? मेरे शास्त्री जी के बारे में मेरा कोई प्लान अभी, मेरा कोई प्लान, मेरा जो मैंने काम करना था खत्म हो गया। ओके, मेरे को जो समझ में आया है, जो मैंने उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी थी, जो मैंने कर दी, जो कंक्लूजन था मैंने वो ड्रॉ करके डाल दिया उसके अंदर, और जो डिमांड रखनी थी वो डिमांड डिक्लासिफिकेशन की रख दी है। अब मैं इंतजार कर रहा हूँ कि सरकार कब शास्त्री जी से जुड़े सारे कागज डिक्लासिफाई करती है, या कब फ्यूचर में कोई और फॉरेन कंट्री से कोई डॉक्यूमेंट उसके बारे में हाथ रखता है। तो उसी में मेरे को डिक्लासिफिकेशन में इंटरेस्टेड हूँ मैं। तो अगर वो होता है, यहाँ होता है या फॉरेन कंट्री में होता है, मैं उसी का इंतजार कर रहा हूँ। अदरवाइज और कुछ करने के लिए है नहीं, क्योंकि जैसे नीरज जी वाले केस में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होती रहती है, इस केस में कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रही, कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कोई कमीशन नहीं बैठा, कुछ नहीं हुआ, उसमें क्या करेंगे? तो अभी की डिक्लासिफिकेशन का इंतजार है। अगर फाइलें खुलती हैं भारत में तो बहुत खुशी की बात है, यहाँ से नहीं खुले तो फॉरेन कंट्री में खुल जाए। हमारे को तो वो ऐसे भी ऋग्वेद में बोल रखा कि जहाँ से भी अच्छी चीज़ आती है वहाँ ले लो, तो चाहे यहाँ से आए चाहे फॉरेन से आए, तो मेरे को तो ओके। सो आगे आपका लास्ट टाइम हमने बात किया तो अभी आर यू वर्किंग ऑन सम प्रोजेक्ट? इफ यू वांट टू हमारा नेताजी वाला प्रोजेक्ट पूरा लाइफ लॉन्ग है, वो तो उसको हम जिंदगी भर छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उसमें हमें कन्विक्शन है कि वो भारत में से जिंदा थे। हाँ। वो मुद्दा अलग है शास्त्री वाले के, शास्त्री जी चले गए, इसका तो कोई वो हमारे को वो उसमें वो नहीं है, लेकिन वो है अभी उसमें कुछ एक्टिविटीज होंगी। तो अभी कोविड के चक्कर में हम लोग ठप होके बैठ गए। कोविड जो है, कोविड के कारणों से और कुछ अपने पर्सनल कारणों से कुछ मामला रुका हुआ है। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कोविड खत्म हो। एक चीज़ मैंने अभी थोड़े दिन पहले अपने सब फ्रेंड से रिक्वेस्ट किया, आपसे भी कर लेता हूँ रिक्वेस्ट, कि मैं चाहता हूँ कि जो मेरे लेक्चर हुआ करते थे 2019 में, जब मैं 19 के शुरुआत 20 की शुरुआत से मैं कहीं लेक्चर देने नहीं जा सका। एक बार क्या था बीच में,
कि कोविड की वजह से हमारा सारा बंद हो गया। और ये मुद्दे ऐसे हैं जो मेरी प्रेजेंटेशंस होती हैं सुभाष बोस पे या नेताजी वाले केस में, वो बिना मतलब आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाए, वीडियो दिखाए मज़ा नहीं आता। मैं उसी को प्रेफ़र करता हूँ कि मेरे को जो मेरे लेक्चर होते हैं हॉल्स में, वो शायद ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं कन्वे करने के लिए। ये ज़रूर फ़ायदा है कि ऑनलाइन टॉक्स की रीच बहुत ज़्यादा है, और ऑनलाइन का फ़ायदा ये कि आप बैंगलोर में हैं, मैं दिल्ली में हूँ, कोई आदमी जापान में बैठा है, तो हम लोग सब मिलके बात कर सकते हैं। ऑनलाइन की अपनी इम्पोर्टेंस है, वो रहेगी, वो करते रहेंगे अपने-अपने इसमें। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरे लेक्चर्स हैं वो शुरू हो जाएँ, टॉक शुरू हो जाए। उसका फ़ायदा ये भी होता है कि आप अलग-अलग जगह जाते हैं, अलग जगह आपको लोग मिलते हैं और उनसे काफ़ी कार्यसिद्ध हो जाते हैं आगे इश्यू को ले जाने में। तो मैं चाहता हूँ कि आप, क्योंकि कोरोना भारत में ऑलमोस्ट खत्म, कम से कम लार्जर पार्ट में तो हमारा खत्म हो चुका है कोरोना, और दिल्ली में तो नहीं के बराबर है, और सभी लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने मैं डबल वैक्सीनेटेड हो चुका हूँ, तो सब प्रॉब्लम नहीं है किसी को। तो मैं चाह रहा हूँ कि लेक्चर मेरे लोग जो करवाते थे पहले, या जो लोग पहले से करवाते आए हैं, कि वो लेक्चर्स करवाएँ। मैं अवेलेबल हूँ और कभी ना कभी शुरुआत हमें करनी पड़ेगी। शुरुआत में लोग कम आएँगे, लेकिन अब धीरे-धीरे करेंगे, बिकॉज़ सब लोग तंग आ गए ना घर बैठे-बैठे। तो एक बहुत बड़ा झटका जो हमें लगा है वो कोविड ने, कि हमको 1.5-2 साल से हम लोग घर बैठे। तो जैसे ही कोविड का शिकंजा थोड़ा हल्का पड़ता है, तो हम लोग निकल करके अपना काम जो है नेताजी वाले केस में, क्योंकि अगले साल सुभाष बोस की 125वीं सालगिरह अगले साल है, इस साल नहीं थी, वो अगले साल है। इस साल तो शुरू हुई है। तो नेताजी वैसे भी न्यूज़ में अगले साल होंगे। तो हम चाह रहे हैं कि उसमें हम अपना योगदान करें, और कुछ ना कुछ हम लोग करेंगे, लेकिन ये कोविड हमको ज़रा जो घर में बांध के रखा हुआ है, वो ज़रा छोड़ दें। अभी फ़िलहाल छूट गए हैं, सारे काम हो रहे हैं, सब चीज़ें खुली हैं, दिल्ली में थिएटर्स खुले हुए हैं, सब कुछ खुला हुआ है। तो आपके माध्यम से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी बंधु चाहते हैं कि मैं लेक्चर्स के लिए आऊँ, तो मैं अवेलेबल हूँ। अगर आप, पहले लोगों ने मुझे बहुत बार बीच में पूछा था एक बार, मैंने कहा था अक्टूबर के बाद करूँगा, तो अक्टूबर आ गया है। तो दैट इज़ द ओनली वे आउट, दैट इज़ द ओनली फ्यूचर प्लानिंग दैट आई हैव विद मी राइट नाउ। Okay. So, yeah. So, thank you, Anuj, for joining with us. It was pleasure talking to you once again after so long time, and hope we will talk again in upcoming translation of Netaji book Conundrum. Thank you for joining. चलो जी, Yeah. थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आप लोगों से। Hopefully, you liked this episode. Please don't forget to like, comment, and subscribe.